of you on today's webinar on amendments in budget to 2021. And on this subject, none other than our Guruji is with us. But before giving to or over to Guruji, I would like to discuss only one or two things. Recently, I got a chance to travel with Guruji to Vrindavan, Mathura, Govardhan, and Barsana. I picked him at 7 o'clock and end up at 10. But लेकिन मैं आपको बता दूं, उसके बावजूद भी गुरुजी में इतनी स्फूर्ति थी कि एक वेबिनार और कर लूं, लेकिन मैं टायर्ड फील कर रहा था, जबकि हमने गोवर्धन की कुछ परिक्रमा पैदल भी दी गुरुजी ने, और एक सेमिनार भी अटेंड किया मथुरा में. तो दिस इज द सर, गुरुजी पे ये कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है और आशीर्वाद है भगवान का, ये तो पक्की बात है. क्योंकि मैं भी 10:30 बजे जब रात को बज गए थे, मैं भी टायर्ड फील कर रहा था. So sir, thanks to God and thanks to all attendee. I welcome all the attendee and our honorable Central Council member CA Sanjeev Singhal ji is with us, who just won the fighting with the COVID. And I request him, sir, I welcome you and request you to speak and hand it over to Guruji. After you, sir. Thank you, Rajesh bhai. Honorable Dr. Girish Ahuja sir, Guru for all and my mentor. In most of the program, we say that sir doesn't need any introduction. That is fine, absolutely fine. But it's our duty to tell a few words about him. Sir is a graduate and postgraduate from Shri Ram College of Commerce and is a position holder. He was awarded PhD by Faculty of Management Studies. Our PhD guru is also same, Dr. V.K. Balla, and he's a fellow of the ICI and a rank holder in both inter and final. He's been nominated by the government to the Central Council of Institute of Company Secretary of India for 6 years, and he's been a special invitee to the Direct Tax Committee and International Tax Committee of ICI. In fact, I would say that the Direct Tax Committee of ICI is never complete without Girish Ahuja sir. Sir has been the Board of Directors of State Bank of India and many other companies, and now we often see him on the TV doing yoga, and Baba Ramdev also takes his name many times, and he's on board of his company. And sir has addressed more than 4,000 seminars organized across the length and breadth of not only this country, but since the time the virtual webinars have started almost across the world. And I'm also happy to share that today I received a proposal from the commercial publication giving a discount of 35% on his books, on his budget books, and a 40% discount on a combo of books. And as a chairman of the committee for member in practice, and I mean, normally we call a meeting, but in this case, we have promptly accepted that offer. We were glad to accept that offer. So all our members will be able to buy his books at a significantly discounted price. In a day or two, we will come out with this announcement, and that also happened because of his blessings and Dr. Ravi Gupta's blessings. So thank you, sir. Our members will be immensely benefited. And with this, sir, I would straight away like to hand it over to you to enlighten us on the amendments that have taken place in the Income Tax Act after the Union Budget was presented. Over to you, sir, and thanks. Good evening, friends. Central Council member of the Institute of Chartered Accountants of India, CA, and Dr. Sanjeev Singhal ji, founder of the study circle, Rajesh Agarwal ji, Sunil Dhamija ji, Rajiv Kohli ji, Jagjeet Singh ji, संजय शर्मा जी भी मेरे सामने बैठे हैं, मुदित कुमार जैन जी, हेमंत पावा जी, the other dignitaries, ladies and gentlemen. Well, friend, let me tell you, the bill was presented, the finance bill was presented on 1st of February by the finance minister. After the bill is presented, at the time of passing that bill, certain amendments are brought. Those amendments are known as government amendments. Those amendments are not as government amendments. I was really surprised to find so many amendments which have come in the form of a government amendment while moving the bill. अब आप बताइए, जब वो मूव बिल किया उस वक्त अमेंडमेंट आई, किसने पढ़ा, क्या देखा है पांडे, किसी को टाइम मिला देखने का? और सर, कोई अमेंडमेंट तो ऐसी आ गई हैं
जो फाइनेंस जो इमीडिएटली लागू हो गई, आप मार्च के 24-25 को मार्च को अगर अमेंडमेंट ला रहे हैं और एप्लीकेबल कब है? प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। किसी ने डिसीजन ऑलरेडी ले लिया होगा उसके पहले, उसको तो दिक्कत हो गई, उसको तो एडवांस टैक्स भी जमा कराना पड़ेगा, उसको तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ व्हाट काइंड ऑफ अमेंडमेंट है बिल्कुल। मेरा डिस्कशन हुआ, जब ये अमेंडमेंट आई मैंने उनसे बात भी करी कि सर कम से कम ये अमेंडमेंट जो लाए थे एक अगले साल से ले आते, पिछले साल से लाने का क्या मतलब? लेकिन फायदा नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी पास हो चुकी थी, एंड वंस इट हैज बीन पास बाय द पार्लियामेंट दे आल्सो कांट डू एनीथिंग। लेकिन ये लाने वक्त इनको नहीं चाहिए था कि इतनी अमेंडमेंट लाएं और जो बैक डेट से एप्लीकेबल। बैक डेट का मतलब प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22 जो चालू हो गया। असेसमेंट 21-22 स्टार्टेड यस्टरडे, दैट मीन प्रीवियस ईयर तो खत्म हो गया मार्च 21। एक चीज और बताऊं, इस बार स्क्रूटनी असेसमेंट नहीं हुई है। किसी को नोटिस आया? 143(2) खत्म हो गया, जान के नहीं की, लेकिन 148 को बढ़ा दिया है 1 साल के लिए। कोई मुझसे पूछता बड़े फैन आए, ये किस कंट्री किस पावर के अंडर बढ़ा दिया? सर पावर इनके पास थी, वो जो टैक्सेशन एंड अदर लॉ, रिलैक्सेशन ऑफ प्रोविजंस एंड सर्टेन अमेंडमेंट, उसमें इन्होंने पावर ले ली थी कि पेंडेमिक की वजह से हम कोई भी डेट बढ़ा सकते, और इन्होंने बढ़ा दी 148 की डेट 30th अप्रैल कर दी। You know that the notice can be issued for 148 till 30th April. तो ये सतीश जी को भी वेलकम कर रहा हूँ, सतीश जी ने ज्वाइन किया है। तो ये मैं आपको बताऊं राजेश जी कि ये कमेंट 148 का नोटिस 30 अप्रैल तक आ सकता है। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी कल परसों कि सर आज वो साइट चल नहीं रही है और कईयों की रिटर्नें नहीं जा सकी हैं, और हमारे को संजय शर्मा जी ने लिखा था और मुझे पास आउट किया था मैसेज कि आप बात करिए और कुछ करिए। अब संजय शर्मा जी की बात टाल नहीं सकता, तो मैंने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो पॉसिबिलिटी, दो कारण भी थे। वन रीजन वाज दैट इफ दे हैड एक्सटेंडेड द पीरियड, द स्क्रूटनी असेसमेंट फिर 1 year आफ्टर दैट, 3 months आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज सबमिटेड। मैंने उनको कहा था 1-2 दिन बढ़ा दो, लेकिन नहीं बढ़ाया। आई कांट हेल्प इट, अभी भी पेंडिंग है इशू। शायद बेटर सेंस प्रिवेल एंड दे मे डू इट इन a day or 2, बट वेरी अनलाइकली, वेरी अनलाइकली। हालांकि मैंने कहा जरूर था कि सर ये दे दीजिए, कुछ दिन साइट नहीं चल रही, लेकिन वो यही कहते हैं कि हमारे यहाँ तो हर चीज लास्ट मिनट पे, 31 मार्च से पहले आपने क्यों नहीं किया। चलिए चलिए वो छोड़िए। कैन वी इन्वोक 119 इन दिस 119 जुरिसडिक्शन हार्डशिप दिखा के 119 में उनको इन्वोक? सर उनके पास पावर उसमें ही है, उसमें जो रिलैक्सेशन प्रोविजन में वहां कर सकते हैं। इनके पास हर चीज की पावर है। डेट एक्सटेंड जो करी थी वो भी पावर है। वो कहते हैं 31 मार्च के बाद हम नहीं कर सकते क्योंकि 31 मार्च द लास्ट डेट, लेकिन 31 मार्च तो इसकी भी थी 148 नोटिस की। आपने बढ़ाया, असेसमेंट की भी तो थी, आपने बढ़ाया ना 1 महीना असेसमेंट के लिए 30th अप्रैल। सो दे कैन डू इट इफ दे वांट। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, सरकार सुनती तो है, लेकिन कुछ लोग वहां पर हैं जो सुनाना नहीं चाहते, बताते नहीं है उनको, ये बात है। चलिए, पहली मेरी डायरेक्ट अप्रोच थी तो मैं डायरेक्ट चला जाता था, अब इनडायरेक्ट अप्रोच में प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए सर वापस आते हैं। सर बहुत ज्यादा चेंजेस किए, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस वो बताऊंगा। पहली तो चेंज इन्होंने वो करी कि एक सेक्शन आया था नॉट लायबल टू टैक्स, सेक्शन 2 क्लॉज 29A में। ये क्यों लाया गया था? आपको बताया था कि जब ये लोग UAE में रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं जहाँ कोई टैक्स नहीं लगता, वो कहते हैं हमारी कंट्री में तो टैक्स है ही नहीं, लगना क्या हुआ? अगर तो इनकम टैक्स होता तो कौन है कि हमारी कंट्री में तो टैक्स है ही नहीं, तो आप क्यों ला रहे? लेकिन फिर उन्होंने क्या करा, लायबल टू टैक्स की डेफिनेशन दे दी पहले से, ये फाइनेंस बिल 2021 में, लेकिन उसकी लैंग्वेज बड़ी फॉल्टी थी। लैंग्वेज में उन्होंने क्या करा, जो लैंग्वेज में गलती थी उसको अब रेक्टिफाई कर दी। लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था वेयर देयर इज अ टैक्स लायबिलिटी, वो कहते हैं ये टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, या तो लिखो इनकम टैक्स लायबिलिटी। आपने तो टैक्स लायबिलिटी थी, टैक्स तो कई है कंट्री में, तो इसलिए इन्होंने 229A को दोबारा चेंज किया है
जरा लैंग्वेज सुनिए अब क्या चेंज किया, सुनिए। देखिए लायबल टू टैक्स का मतलब बता रहे हैं, लेकिन उनका पर्पस था नॉट लायबल का होगा। पहले लायबल सुनिए, लायबल टू टैक्स। अब सुनिए क्या कहते हैं, इन रिलेशन टू ए पर्सन एंड विद रेफरेंस टू द कंट्री, ए पर्टिकुलर कंट्री मींस, पहले कंट्री को नहीं लिखा था, अब लिखा है लायबल टू टैक्स इन रिलेशन टू ए पर्सन एंड विद रेफरेंस टू ए कंट्री means that there is a income tax liability on that person in that country for the time being, for the law for the time being in force. क्या बोला है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कि वो किसी भी कंट्री में, किसी पर्टिकुलर कंट्री में उसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी, लायबल टू टैक्स मींस इन रिलेशन टू ए पर्सन, इन रिलेशन टू ए पर्सन एंड विद रेफरेंस टू ए कंट्री, there is an income tax liability on that person in that country for the time being in force. And it also includes the person who has been given exemption subsequently, who has subsequently been given exemption of the income tax liability as per the law. तो उन्होंने कहा जैसे यूएई में, सर वहां तो इनकम टैक्स है ही नहीं, वहां तो इनकम टैक्स है ही नहीं, तो वहां पर जब वो सेक्शन दे रहा हुआ है 6 वाला 61A कि डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा, तो उस डीम्ड रेजिडेंट में लिखा था ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी कंट्री ड्यू टू हिज रेजिडेंस, ड्यू टू हिज डोमिसाइल, ड्यू टू हिज एनी अदर कैटेगरी। पहले लायबल का क्या मतलब है राजीव जी, देयर इज ए लायबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स इन दैट कंट्री, लायबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स। जहां लायबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स नहीं है तो उसका मतलब वो नॉट लायबल टू टैक्स हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उन्होंने वो चीज का जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको दूर कर दिया कि अगर वो कंट्री में इनकम टैक्स नहीं भी नहीं है तो भी तो नॉट लायबल हुआ। अगर इनकम टैक्स है तो देयर इज अ लायबिलिटी टू टैक्स, नहीं है तो नॉट लायबल टू टैक्स होगी। तो इस वजह से सेक्शन 229A को थोड़ा सा चेंज करा, क्योंकि लैंग्वेज वाज फॉल्टी एंड दे वांटेड टू करेक्ट द लैंग्वेज एंड दैट्स व्हाई दे हैव रेक्टिफाइड द लैंग्वेज, बट मीनिंग उसका वही निकल रहा है जो पहले निकल रहा था। क्लियर हुआ कोहली साहब? ये सेक्शन 2 क्लॉज 29A में चेंज करी है। आगे बढ़ते देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम, ये क्या चीज है? आपको याद हो कि लॉ आया था अभी थोड़े दिन में कि अगर सेक्शन 10(11) में आया था, 10(12) में, कि अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, इफ देयर इज ए कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय to his provident fund, whether it is statutory provident fund or recognized provident fund of an amount exceeding 2,50,000। आया था ना सर, 2.5 लाख से ऊपर अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करे, हाँ डिडक्शन तो 1.5 की मिलनी है, लेकिन उन्होंने कहा था उस इंटरेस्ट जो मिलेगा ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 2,50,000, 2,50,000 तक का इंटरेस्ट माफ है, और इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 2,50,000 वो टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। पहले तो राजेश जी कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? एम्प्लॉय का 2.5 लाख से ऊपर का इंटरेस्ट है, 2.5 लाख तक तो माफ है। सपोज उसने कंट्रीब्यूट किया 4.5 लाख, तो वो 2 लाख में जो इंटरेस्ट आएगा उस पे वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। सतीश जी कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? क्या सैलरी के हाथ में टैक्सेबल होगा? जी नहीं, ये टैक्सेबल होगा अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और क्योंकि ये इंटरेस्ट है तो सेक्शन 194A में टीडीएस भी तो कटेगा। अरे सर टीडीएस भी तो कटेगा सेक्शन 194A में, am I right? वो तो इंटरेस्ट वहां पर आता ही है। अब प्रॉब्लम है, इन्होंने अभी तक बताया नहीं कि वो अक्रूवल बेसिस पे होगा कि पेड बेसिस पे होगा। और एक और प्रॉब्लम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग हो सकती है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर इन्होंने अक्रूवल सिस्टम कर दिया तो टीडीएस तो अक्रूवल पे कटेगा। सर टीडीएस तो अक्रूवल पे कटेगा, कैश में नहीं कटेगा। लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा? अगर आप कैश फॉलो करोगे तो आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा हर बार टीडीएस जो आपको एक्स्ट्रा कटा है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है। और काटेगा कौन? अरे वो काटेगा कौन? प्रोविडेंट फंड वाले काटेंगे। एम्प्लॉय तो एम्प्लॉयर थोड़ी है, वो प्रोविडेंट फंड वाले मानेंगे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट गवर्नमेंट की स्कीम, उस पर टीडीएस को काटना पड़ेगा। लेकिन ये मेथड बताएंगे कैसे काटना है, वो टाइम भी मैं आपको नहीं बता, वो तो रूल आएगा। लेकिन मैं क्या कहने चाहता हूँ,
करा क्या है? देखिए, गवर्नमेंट में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड नहीं होता, एम्प्लॉयर नहीं करते। वहां पर तो पेंशन मिलती थी, या आजकल वो पेंशन फंड आ गया है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट में है ही नहीं, लेकिन वहां एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो है। एम्प्लॉय, इन्होंने क्या किया है, वेयर देयर इज नो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, इन दैट केस दिस लिमिट ऑफ 2,50,000 शैल बी रेड एज 5 लाख। कोहली साहब क्या किया है, अपने 5 आप लाख को हो गया। फायदा करा दिया। हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय 5 लाख तक कंट्रीब्यूट कर ले, उसको कोई इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता। हम नहीं कर सकते, आप नहीं। पहले हम लोग तो वैसे ही पीपीएफ में, और पीपीएफ में 1.5 लाख से ऊपर होता ही नहीं। लेकिन कोई अगर एम्प्लॉय भी है तो 99% केसेस में उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होता है। प्राइवेट में एम्प्लॉयर भी होता है, एम्प्लॉय भी होता है। तो उसके केस में तो जगदीश जी 2.5 लाख ही रह गए। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है या एफिलिएटेड टू गवर्नमेंट है, वहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो उनकी लिमिट बढ़ाकर 5 लाख करी। मैं गया, मैंने कहा कर दिया ना अपने आप फायदा, ये आपके हाथ में हथियार है, आप जो मर्जी कर ले, आपके इंटरेस्ट में है, कर लिए। तो मुझे बोला एक ने कि हम तो चाहते थे ना हो, लेकिन उसने कर दिया, तो हमें क्या नुकसान हुआ। तो 5 लाख तक हो गया सर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, प्रोवाइडेड देयर इज नो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ये क्लियर हो गया सर। ये दोनों सेक्शन 10(11) और सेक्शन 10(12) में ये एक सेकंड प्रोवाइजो डालकर इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट। क्लियर हो गया सर। ये चेंज इन्होंने करी है जो मैं आपको बताना चाहता था, सेक्शन 10(11) और सेक्शन 10(12). मैंने एक सेक्शन छोड़ा है 9B, ये बाद में लूंगा। रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब 9B सुनेंगे। जब 9B को मैं 45(4) और बाकी चीजों से सिखाऊंगा तो आप देखेंगे ये किया क्या है। मैंने जानकर छोड़ा है, थोड़ी देर में पहले मैं बाकी कर लूं और फिर आराम से बैठकर 9B और 45(4) करेंगे। पहले तो समझाने में मुझे आधा घंटे से ज्यादा लगेगा उसका, और फिर आपके सवाल बहुत आएंगे, इसलिए मैं पहले बाकी कर रहा हूं पिछले बार। अब याद कीजिए राजेश जी सर, पीछे आया था गुडविल ऑफ ए बिजनेस और ए प्रोफेशन पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। था सर, सतीश जी था ना, अभी आया है गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन में नहीं मिलेगा। तभी तो उन्होंने सेक्शन 32 चेंज कर दिया था, इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन चेंज कर दी थी, उन्होंने ब्लॉक ऑफ एसेट चेंज कर दिया था, और उन्होंने कहा था जिसपे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी स्विम सिक्योरिटीज पर, और ये डेप्रिसिएशन हमें मिला करता था। मैंने उनसे पूछा ये आपने क्यों किया? कहता है ये जो बिग 4 वाले हैं वो सोचेंगे। मैंने उनके लिए कहा, क्योंकि मैंने शक्ल देखी अभी देखी दोबारा, तो कह रहे बिग 4 वाले क्या करते हैं, बहुत हैंडल करते हैं अमलगमेशन के केसेस। सारे काम बड़ों के पास आते हैं, छोटे पे थोड़ी अमलगमेशन होता है। और वो वहां पर बहुत बड़ा अमाउंट गुडविल का दिखाते और फिर गुडविल पे डेप्रिसिएशन लेते थे 25%। तो ये मिस यूज हो रहा था, हमने इसलिए गुडविल पे डेप्रिसिएशन कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो ये दिखा। चलिए, लेकिन उनको एक गलती रह गई थी कि आपने गुडविल ऑफ बिजनेस को कह दिया, लेकिन सपोज ओवर द ईयर्स मैं ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ले रहा हूं, तो अब क्या होगा? जब मैं ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ले चुका हूं तो वो मेरे ब्लॉक में है ना सतीश जी, ब्लॉक ऑफ एसेट है, इंटेंजिबल एसेट का 25% का उस ब्लॉक में, तो उस ब्लॉक से निकलेगा कैसे? वो तो लिखा ही नहीं था, मैंने जब उनको पहले कहा था। तो अब सेक्शन 43 सब सेक्शन 6 में अमेंडमेंट डाली। क्या डाली कि अगर गुडविल ऑफ ए बिजनेस हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द ब्लॉक ऑफ एसेट, कौन सा ब्लॉक है ये? इंटेंजिबल एसेट का ब्लॉक है। कौन सा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है? 25% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो एक काम कीजिए, वो ब्लॉक की वैल्यू 2 मिनट के लिए रुक जाइए। अब गुडविल को लीजिए, सॉरी गुडविल कितने की खरीदी थी जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते? सपोज मैंने 50 लाख की खरीदी, उसको मान लीजिए कि वो अकेला ब्लॉक में एक ही आइटम 50 लाख, बाकी छोड़ दी, और उस पर आज तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है? 25% के हिसाब से रिटर्न ऑन वैल्यू निकाल लीजिए उस 50 लाख, प्रोवाइडेड 88-89 के बाद खरीदी है। तो 88-89 से पहले ब्लॉक था ही नहीं, 88-89 से पहले ब्लॉक था नहीं। तो अगर ब्लॉक नहीं है तो 88-89 से पहले है तो उस इंडिविजुअल एसेट की निकाल लीजिए, और फिर ब्लॉक में आ गई
उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू निकाल। सर 50 लाख की खरीदी थी मैंने 2005 में, तो 2005 से लेकर आज तक की रिटर्न डाउन वैल्यू निकल गई सर 25% रिटर्न डिस्काउंटेड। सपोज वो रिटर्न ऑन वैल्यू 28 लाख आती है, मैंने एग्जांपल दी 50 लाख डेप्रिसिएशन एवरी ईयर आपने करके ब्लॉक में एक ही आइटम अज्यूम करिए, क्या है, गुडविल 28 लाख। अब इस 28 लाख को जो ब्लॉक की कीमत है उसमें से लेस कर दीजिए। वो ब्लॉक अगर इंटेंजिबल एसेट का 70 लाख का है तो 70 लाख से 28 कम कर दो, आगे से डेप्रिसिएशन 42 लाख में मिलेगी। अगर वो ब्लॉक 50 लाख का इंटेंजिबल एसेट का 28 लाख कर दो, 22 लाख की मिलेगी। अगर वो ब्लॉक 40 लाख का है 28 लाख कर दो, 12 लाख पे मिलेगी। वो ब्लॉक 30 लाख का है 28 लाख कर दो, 2 मिलेगी। लेकिन सपोज वो ब्लॉक ही 25 लाख का रह गया था, क्योंकि डेप्रिसिएशन वगैरह कोई बेचा कोई खरीदा होता है ना सर, तो कोई बात नहीं 25 ही लेस कर दो 28 लाख, तो नील हो जाएगा ब्लॉक की वैल्यू। समझ में आ रहा है सर? मैंने एग्जाम्पल ठीक तरह से समझा दी कि आपको क्या करना है, उस गुडविल की परचेज वैल्यू लेनी है जब ओरिजिनली परचेज करी, वहां से उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू निकालनी है, अज्यूमिंग इट इज ओनली ब्लॉक इन द आइटम इन द ब्लॉक। वो अलग निकालो, वर्किंग करो। रिटर्न ऑन वैल्यू 25% करते करते अरे कुछ तो वैल्यू बची होगी, ये तो है ही नहीं, तो गुडविल बेची थोड़ी है, वो बची हुई है। बची हुई वैल्यू 22 लाख की, तो जो रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक है उसमें से 22 लाख लेस कर दो। अगर रिटर्न ऑन वैल्यू ब्लॉक का 22 से कम है तो 0 कर दो, अगर ज्यादा है तो बाकी बैलेंस पे डेप्रिसिएशन आगे से ले दो। ये 43(6) में अमेंडमेंट डाल के ठीक किया है। ये क्लियर हो गया सर? कोई इसमें इशू है? कोई पूछना है तो पूछ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बताया। अभी भी पूछ सकते हैं, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, लेकिन ये चीज पूछना है तो जरूर पूछिए। है कोई राजेश जी किसी की क्वेरी इसमें? सर अभी 10 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन पढ़ने पड़ेंगे, इससे रिलेटेड है या नहीं कोई? चलो फिर आराम से पढ़ते रहिए, मैं आगे हाँ। बढ़ूंगा। अब अगला सेक्शन 44AB में आपको पता है 5 करोड़ की लिमिट को 10 करोड़ कर दिया था, इसी साल किया था सर? जी सर, जी इसी सर। साल किया था 10 करोड़। लेकिन 10 करोड़ की लिमिट के साथ एक क्लॉज भी तो है ना वो प्रोवाइजर, क्या कि 95% द पेमेंट और द रिसीट शुड बी इन ए मोड अदर देन कैश। यही था ना सर? जितनी भी टोटल रिसीट है या टोटल पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर है वो 95% इन मोड अदर देन कैश। और आपको पता है राजेश जी, जो रिटर्न है, रिटर्न के फॉर्म में लास्ट ईयर सर्टिफाई करना पड़ रहा था किसको? असेसी को, कि 95% पेमेंट अदर देन कैश है। एम आई राइट सर? कर रहे हो ना? रिटर्न भरी होगी तो उसमें है। अब सुनिए, इनको एक ख्याल आया कि सर हमने मोड अदर देन कैश लिखा है, तो कोई अकाउंट पे ही चेक ना दे के क्रॉस चेक दे दे, बेयर चेक दे दे, क्रॉस ड्राफ्ट दे दे, तो क्या होगा? ये तो अदर देन कैश है। अपनी गलती को पकड़ लिया, अदर देन कैश है, तो नीचे लिख दिया फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द अमाउंट रिसीव्ड और द पेमेंट इफ मेड बाय check drawn on a bank or a draft, then if it is not account pay check, if it has not been given as per account pay, then that amount will be treated as payment made in cash. Yes. तो कैश में माना जाएगा अगर क्रॉस चेक है। अब मुझे बताइए राजेश जी, ये कौन सा प्रूफ रखना पड़ेगा? कैसे रखेंगे कि मैंने जो सारे चेक हैं वो, और वो अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी वहां पर किसको? मुझे नहीं देनी है, असेसी को। मुझे नहीं देनी है, अच्छा, असेसी ने देनी है कि भैया ये सारे, इसमें कोई भी अकाउंट पे ही चेक से बगैर नहीं है। 95% वाली जो लिमिट है, एम आई राइट? 5% कैश में आ जाएगा नहीं। अब लोग कह रहे हैं इस वजह से भी अब लोग ऑडिट करा लिया करेंगे कि अंडरटेकिंग दें, रिस्क हो गया, कौन फंसेगा? 1 करोड़ की, फिर तो 1 करोड़ की रह जाएगी, फिर तो 1 करोड़ ही रह जाएगी। सर प्रॉब्लम क्या आती है राजेश जी? मैंने माल बेचा, खरीदने वाला 44AD में कवर्ड है, वो मुझे कैश पे कर देता है, उसको तो 48(3) लगता नहीं, 44AD वाले को 48(3) लगता नहीं, मैं कैश रिसीव कर लेता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कैश ही है। तो मैं फंस गया ना 95% वाले में कि भाई ये जो है कैश में आया,
तो कई बार मैं मानता हूं मेरे जो एक्सपेंडिचर हैं बेसिकली वो 48.3 लगता है, और 48.3 लगने की वजह से वो अकाउंट पे ही चेक तो हो गए ही होंगे, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट हो गए होंगे, नहीं तो जगदीश जी डिडक्शन ही नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, वो होंगे ही होंगे अकाउंट पे ही चेक। लेकिन उसमें भी दिक्कत है, हमारे महानुभाव कई बार 10-10 हजार की पेमेंट हर रोज कर देते हैं, समझ में आ गया ना, और रोज 10-10 हजार कर दो तो वो भी अलाउड है। तो इस वजह से अब काफी पॉसिबिलिटी है कि क्लाइंट अपनी जान छुड़ा ले और कहे यार 44 AB का ऑडिट कर दे। एक तो मुझे फायदा होगा, क्या मेरी डेट एक्सटेंड हो जाएगी रिटर्न फाइल करने की, और दूसरा थोड़े से पैसे लेगा, रिस्क तो मेरा नहीं है ना, रिस्क तो आपने जब कर दिया। तो मैं ये पॉइंट कर रहा हूं लोगों के दिमाग में अब दोबारा सिस्टम आ जाए, अदरवाइज व्हाट इज दिक्कत। पर एक प्रॉब्लम है, किसी ने 95% से ज्यादा अकाउंट पे ही है, वो भी कह देगा मैं नहीं करूंगा, उसकी डेट एक्सटेंड हो गई। राजेश जी, मैं सपोज सारी पेमेंट अकाउंट पे से करता हूं, सारी पेमेंट अकाउंट से, तो मेरे लिए तो 10 करोड़ होनी चाहिए, मैं कह दूंगा नहीं यार तू मेरा ऑडिट कर दे, तो अब डेट एक्सटेंड हो गई कि नहीं हो गई। अब ये भी डाउट हो गया, ये एक प्रकार से लोगों के दिमाग में प्लानिंग का इशू आ गया, क्योंकि उसने मुझे कहा, मैं वैसे कहां से वेरीफाई करूं, उसने मुझे कहा मेरा ऑडिट कर दो, मुझे नहीं पता मेरा 95% है कि नहीं, मैंने ऑडिट कर दिया। तो उस ऑडिट में जब कभी ऐसा मौका मिले तो 3 डेट बढ़ जाएगी ना, जुलाई से निकल के अक्टूबर डेट हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी राजेश जी। तो ये एक इशू है जो हो सकता है, लेकिन ठीक है जो भी है, ये लॉ बदल गया, 44 AB आ गया और उसमें उन्होंने एक डाल दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, वो तो हमने ऑलरेडी कह दिया था कि हमारे महानुभाव जो हैं 44 AD में उन्होंने उठाकर 44 AD से डाल दिया था, एवरी पर्सन बीइंग इंडिविजुअल HUF और फर्म अदर देन LLP कैरिंग ऑन ए प्रोफेशन रेफर्ड टू अंडर 44 AA। तो हमने उसी वक्त कहा था अबे भैया ये क्या कर रहे हो, क्या HUF भी प्रोफेशन कर सकता है। अब ये बातें उनको समझ में नहीं आई, हुआ क्या था, उन्होंने उठाकर 44 AD से लैंग्वेज नीचे डाल, कट किया, पेस्ट किया, डाल दिया। ये रियलाइज नहीं किया कि HUF तो कर ही नहीं सकता, लीजिए वो अब उन्होंने वहां से हटा दिया है। अब हटा दिया, नाउ 44 ADA में आएंगे इंडिविजुअल और फर्म अदर देन LLP। तो संजय जी क्लियर हुआ, और अब HUF को हटा दिया, वो तो थी उनकी गलती, हमारी थोड़ी थी, उनकी गलती थी, वो गलती को रेक्टिफाई कर दिया। क्लियर हुआ, वो गलती सिर्फ रेक्टिफाई हुई है और इसमें कुछ नहीं करा है। अरे बहुत जगह पर जहां पर भी 10(4)D, 10(4)E, 10(4)F, इन्होंने क्या किया है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है गिफ्ट सिटी, वहां पर भी एक बेनिफिट दे दिया जो पहले नहीं था, उनको बेनिफिट दे दिया। तो कई सेक्शन, उनको 11 सेक्शन चेंज करने पड़ गए 80LA की सेक्शन को लेकर, 44, 10(4)D, 10(4)E, 10(4)F, 10(23)FE और सेक्शन 115ACA, ये कई सेक्शन उन्होंने चेंज करे, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर 80L में जो बेनिफिट मिलता है सबको उन चीजों का बेनिफिट देने के लिए ये सेक्शन उन्होंने चेंज करे, इसलिए वो ज्यादा हमारे मतलब के नहीं है, इसलिए मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर। आगे चल, वो भी तो फॉलो करते हैं आपके लेक्चर, तभी तो करेक्शन कर लेते हैं। व्हेन यू डिलीवर आफ्टर बजट, तो करेक्शन जब आप बताते हो तो सुन लेते हैं, दे नोट इट डाउन। सर देखिए, वो मैं अकेला नहीं, बहुत है, जब भी कोई लेक्चर दे रहा होता है वो भी पढ़ता है, ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला पढ़ता हूं। और एक चीज संजय जी बताऊं, आप किसी से भी सीख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सब चीज मुझे ही आती है, हर एक का नजरिया पढ़ने का अलग अलग होता है। पर लेकिन वो जब गालिब का अंदाज तो दिया उसका और था ना, अपना वो वाली interest बात है, होता ना, वो वाली वहां बात पर है वो गलती ढूंढ लेता है, जहां उसका अपना इंटरेस्ट होता है संजय जी, वहां गलती वो फटाफट ढूंढ लेता है। ये मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं कई चीजें मेरे इंटरेस्ट की नहीं होती, मैं अवॉइड कर देता हूँ। लेकिन इंटरनेशनल टैक्सेशन की कई आइटमें हैं, अब जैसे वो आइटम आई मैट में उन्होंने हटा दिया था, क्या अगर कोई पिछले सालों की वजह से इंक्रीज हुआ बुक प्रॉफिट, या जैसे वो ट्रांसफर प्राइसिंग की बैक डेट से आपका बुक प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, या सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से करंट ईयर में बुक प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, तो उन्होंने कहता था वो आइटम बुक प्रॉफिट से हटा लीजिए। अब उनको याद आया कि अगर किसी ने उसका इनपुट वो ले लिया है क्या मैट क्रेडिट, तो क्या हो,
तो फिर उन्होंने प्रोवाइजो डाल दिया, इफ यू हैव टेकन मैट क्रेडिट तो लेस नहीं, अगर मैट क्रेडिट नहीं लिया तो लेस हो जाएगा। तो ये टेक्निकल चीजें हैं, ये जनरल लेक्चर में बताकर मजा नहीं आता है, ये तो अगर बोर्ड में लिखाकर उसको समझाया जाए तो उसलिए ये फर्क पड़ता है, इसलिए मैंने कई चीजें नहीं। अब देखिए राजेश जी 139 में आपको बोला गया था कि 4 और 5 कि आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर हो, यही आया था। जी सर। लेकिन लैंग्वेज क्या यूज करी थी, यू कैन फाइल रिटर्न विद इन 3 months prior to the end of the previous year assessment year, within 3 months prior to the end of the assessment year। वो लैंग्वेज ही गलती, विद इन 3 months नहीं था, इट शुड बी बिफोर 3 months prior to the end of the assessment year। मैंने तो अपने लॉ में वैसे ही लिखा था कि अब उन्होंने वो दोनों सेक्शन ठीक कर दिए, 139(4) और 139(5), जो वो गलती पकड़ी गई कि भाई विद इन 3 months नहीं लिखना था बिफोर 3 months prior to the end of the relevant assessment year। इसलिए 134 को भी चेंज किया, 135, 39, 5 को भी चेंज किया, रिवाइज रिटर्न। क्लियर हुआ? अब इन्होंने नया सेक्शन डाला था 148। क्या डाला था? इन्होंने कहा था कि हम 149 में लिखा था हम अब आगे से 3 साल के केस को 3 years का रीअसेसमेंट 3 years की होगी, बियॉन्ड 3 years जा सकते हैं, प्रोवाइडेड इन दैट ईयर द इनकम स्केप्ड इज 50 लाख और more। यही है कोहली साहब, यही आया ना 50 लाख। जी सर, जी सर। लेकिन उन्होंने कहा था जो पिछले 7 साल जाना है बियॉन्ड 3 years, वो दैट शुड बी, that information should be in their possession। They have information in their possession because of the books of accounts or the documents or the evidence उनके पास है which represent the asset कि भाई ये जो इनकम स्केप है वो एसेट में रिप्रेजेंट कर। अब एसेट का मतलब क्या होता है? अब इन्होंने कहा ये लोग कहेंगे एसेट का क्या मतलब, तो इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन डालकर एक्सप्लेनेशन को डिफाइन कर दिया। Here asset will include land, building or both. It will include shares and securities. It will include loans and loans, and it will include also cash। ये इन्होंने डालकर क्लियर कर दिया है। कई लोग समझे कि भैया लोन कोई एसेट थोड़ी होता है, ये तो वो कैपिटल एसेट की डफन में चक्कर में आ जाते हैं, इसलिए उन्होंने इसको ठीक करके आपको बताया। एक और था सर, जब कोई सर्वे होता है या कोई भी 148 था तो उसमें कहा था कि अब आपको इंफॉर्मेशन अब बता देंगे कि ये वाली आपकी इनकम स्केप हुई है, और उसका 148A में इंक्वायरी करेंगे और आपको शो कॉज दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, आपको सुना जाएगा, उसके बाद दे विल डिसाइड वेदर देयर इज ए इंफॉर्मेशन व्हिच इज करेक्ट और नॉट, और फिर आपको 148 का नोटिस दिया जाएगा। ठीक है ना सर? पहले तो हम पहले कहते थे रिटर्न भरो, पुराना लॉ में क्या था, फाइल योर रिटर्न एंड देन आस्क फॉर द रीजंस कि किस रीजंस के अंडर आपने ये इनकम स्केपिंग असेसमेंट का नोटिस दिया। फिर वो रीजन की हम ऑब्जेक्शन फाइल करते थे, और ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद फिर वो डिसीजन लेता था, और उसके बाद 147 होता था। यही था ना सर जगजीत जी? अब क्या किया इन्होंने कहा अब तो हम अपने कार्ड्स टेबल पे रखेंगे, ये इनकम तुम्हारी स्केप बता देंगे पहले, और उसकी इंक्वायरी करेगा एओ विद द प्रायर अप्रूवल द कमिश्नर की इंक्वायरी करेगा, और आपको शो कॉज भी दे, और शो कॉज देने के बाद वो देखेगा इट इज फिट केस फॉर रीअसेसमेंट और नॉट। ये पहले ही 148 आया है, लेकिन रुकिए, उन्होंने कहा था अगर सर्च का केस है तो ये इंफॉर्मेशन मानी जाएगी, इसलिए कोई भी आपको नहीं दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी। ये अगर सर्वे का केस है तो मानी जाएगी, रिक्विजिशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो मानी जाएगी, कोई मनी बुलियन ज्वेलरी फाउंड किया गया तो मानी जाएगी। यही कहा था ना सर? ये तो इंफॉर्मेशन मानी जाएगी, इसके लिए 148A नहीं लगेगा। अब हुआ क्या, सर्वे कई जगह का होता है, सर्वे बिजनेस का भी होता है, और सर्वे जगजीत जी TDS का भी होता है, और सर्वे कुछ फंक्शन का भी होता है। कोई मैरिज फंक्शन, किसी की शादी हो रही है, वो आके पता करते हैं कि बताओ कितना खर्च किया, इसमें क्या हुआ, वो सर्वे उसका भी। अब इन्होंने कहा, इन्होंने एक लिख दिया सर्वे होगा तो 148 देने की जरूरत नहीं है, वो तो इंफॉर्मेशन मानी जाए। अब किसी ने रिप्रेजेंट किया सर, आपने TDS का सर्वे किया है, उसके रीजन, उसको तो आप जो इनकम स्केपिंग में कैसे ले जाएंगे? आपने मैरिज फंक्शन का किया है,
अरे मैरिज फंक्शन के बाद मैं क्या दिखाऊंगा वो तो बाद में पता लगेगा ना, अभी से तू कह देगा कि इंफॉर्मेशन है। तो उन दो चीजों को उन्होंने हटा दिया। एक टीडीएस का सर्वे होगा तो उसके लिए तो नोटिस 148A लगेगा। अगर वो मैरिज फंक्शन का होगा या कोई फंक्शन का होगा, कोई सेलिब्रेशन का होगा, तो उसमें भी 148A का नोटिस आपको इंक्वायरी होगी। बाकी के लिए नहीं। ये क्लियर हुआ? ये पॉइंट ये था कि उनकी अपनी गलती थी। अरे भैया, मैं मैरिज फंक्शन पे है, तुम्हें क्या पता मैंने कच्चे का खर्चा के पक्के का खर्चा, वो तो अकाउंट लूंगा उस वक्त। इमीडिएटली तो मैं सारी डिटेलें नहीं दे सकता ना। इमीडिएटली तो ये बता सकता हूँ मैंने 50 लाख खर्चा, मैंने 2 करोड़ खर्चा, या मैंने इतने का बिल दिया। पर हाउ डू यू नो कि मैं अपनी वाइट इनकम से किया, वाइट इनकम से किया, कैसे हुआ? तो आप कहेंगे इसका परसेंटेज नहीं देंगे। इस वजह से उन्होंने इसको हटा दिया। क्लियर हुआ सर? ये भी एक चेंज हुआ है 148 में, जो उन्होंने नीचे एक्सप्लेनेशन डाली थी उसको उन्होंने चेंज कर दिया है। तो ये वहां किया और एसेट की डेफिनेशन 149 में डालकर उसको चेंज कर दिया। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट चेंज जो किया वो ऑब्वियस था कि जगजीत जी आपको पता है 234F में फीस लगती है, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। पहले फीस नहीं होती थी, पहले 271F होता था जब 5000 की पेनल्टी होती थी। याद है? बहुत पुराना रजेश जी, पुराने जमाने में, और लगती ही नहीं थी कभी। मैंने तो आज तक किसी को लगते देखा ही नहीं, को पेनल्टी को इनिशिएट करना पड़ता था, इनिशिएट करके फिर पेनल्टी लगती। जब से फीस आई है 234F 234G, जब से फीस आई है तो उसमें तो नोटिस कुछ है ही नहीं, पेनल्टी तो है ही नहीं। वो तो आपको रिटर्न के साथ ही जमा कराना है कोहली साहब, आपको पता है ना। ये तो एक प्रकार से अगर नहीं जमा कराएंगे तो आपके टैक्स में से काट लेंगे फीस, है ना। जैसे वो क्वार्टरली स्टेटमेंट में 200 रुपए पर डे, यहाँ पर भी फीस थी लेट फाइलिंग की। क्या थी? अगर आप फाइल करेंगे बाई 31 दिसंबर, आफ्टर द ड्यू डेट बाई 31 दिसंबर 5000 रुपीज। इफ यू फाइल आफ्टर 31 दिसंबर 10,000 रुपीज। हाँ, अगर 5 लाख से ज्यादा इनकम नहीं है तो 1000 रुपीज। यही था ना। अब इनको याद आया, अरे यार अब तो रिटर्न 31 दिसंबर के बाद तो फाइल ही नहीं होगी, तो वो 10,000 तो सुपर प्लस हो गया ना। अब 10,000 कहां से होगा? अब तो 5 के ऊपर जा ही नहीं सकते। तो अब इन्होंने 234F को अमेंड कर दिया, और 234 अमेंड करके कह दिया वही, that if you file after the due date and by 31st December, the fees will be 5,000 rupees. And if your total income do not exceed 5 lakh, it will be 1,000. क्योंकि वो सुपर प्लस हो गया था, ऑब्वियसली हटाना चाहिए था, वो हटा दिया 234। एक सेक्शन और डाल दिया 234H। वो तो वैसे कल तो डेट एक्सटेंड हो गई। आपको पता है आधार को लिंक करना है आपको अपने पैन से, लास्ट डेट 31 मार्च थी, लेकिन उन्होंने एक्सटेंड कर दी उस दिन ही कि अप टू 30 जून आप लिंक कर सकते हो। आइए ना कोहली साहब, ये नोटिफिकेशन आइए सर, आप 30 जून कर सकते हो। लेकिन पेनल्टी तो डाल दी कि अगर आप लिंक नहीं करेंगे, अब तो 6 महीने 3 महीने और बढ़ गया ना, नहीं तो 1 अप्रैल से शुरू हो जाना था। तो उसकी जो पेनल्टी होगी वो होगी एज अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड नॉट एक्सीडिंग 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज ये पेनल्टी 234H में डाली है। तो मैंने ये भी कहा आपको बता दूं कि ये अब कुछ जजमेंट आई, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर भी अब ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट इशू कर सकता है, इसलिए उन्होंने सेक्शन 115 ACA डाला। अब एक और था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को हमने एक बेनिफिट दिया हुआ था कि वो TDS 194 LD में 5% कटेगी उनका इंटरेस्ट जो है कुछ बॉन्ड्स का, लेकिन वो इन्होंने हटा लिया था। इन्होंने वापस कर दिया, कोई डिमांड आई वापस वो 5% कर दिया। हमारे मतलब का नहीं है, इसलिए अब नहीं। अब जो हमारे मतलब की चीज है वो जरा सुन। एक सेक्शन डाला था एक राजेश जी 45(4), जो पुराना सेक्शन 45(4) था उसके बदले 2 सेक्शन डाल दिए थे। एक का नाम रखा था 45(4) और दूसरे का नाम रखा था 45(4A) डाला था। सर भूल जाओ उस सेक्शन। पहला पॉइंट सतीश जी जरा ध्यान से सुनो। एक ऑब्जेक्शन हमेशा हो रहा था, पार्टनर जो है वो फर्म में है, वो तो ओनर ही है, तो आप उनको कोई ट्रांसफर वर्ड जो यूज करते हो वो ट्रांसफर कहाँ हुआ? अपने आप को थोड़ी ट्रांसफर होता है। हालांकि हमने सेपरेट माना हुआ है, लेकिन अगर ट्रांसफर वर्ड गलत है और आप लिखते थे वहां 145(4) में वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन
by the firm to its partner, then market value लेकर उसको टैक्स लगा। ये कई जजमेंट आ गई, एक तो ये ट्रांसफर वर्ड गलत, और आपको कहा था फेयर मार्केट वैल्यू लेके कैपिटल गेन टैक्स लगा। अब जरा ध्यान से सुनना सर, ये ट्रांसफर नहीं है। अब जगजीत जी बड़े ध्यान से सुनना, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा अपना आपने कंसंट्रेशन करें। अब सुनिए सर, एक सेक्शन डाला है 9B। ये 9B कहां से सर? देखिए सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 9 तक रेजिडेंशियल स्टेटस और डीम टू अक्रू और राइज सेक्शन 9 में है ना सर, 9 में। और एक 9A डाला हुआ है फॉरेन ऑफशोर फंड जो यहाँ पर है, उनका रेजिडेंशियल स्टेटस के। अब इन्होंने एक 9B डाला है। क्या कहता है जरा लैंग्वेज सुनिए, पहले वो लैंग्वेज सुनिए फिर मैं आपको बताऊं। उसको सुनने से पहले 3 चीजें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। एक नाम है स्पेसिफाइड पर्सन, दूसरा नाम है स्पेसिफाइड एंटिटी, और तीसरा नाम है, मैं आपको बता रहा हूं, ये स्पेसिफाइड पर्सन स्पेसिफाइड एंटिटी का मतलब मैं समझाऊंगा, ये जरा समझिए क्या है, फिर तीसरा भी बता। स्पेसिफाइड पर्सन, देखिए अगर वो फर्म है तो स्पेसिफाइड पर्सन इज पार्टनर, अगर वो एओपी और बीओआई है तो स्पेसिफाइड पर्सन इज द मेंबर। इसका नाम रख दिया स्पेसिफाइड पर्सन, क्योंकि दोनों का नाम बार बार यूज करना पड़ेगा, पार्टनर ऑफ ए फर्म और मेंबर ऑफ एओपी और बीओआई वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, उसको उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन में डाल दिया कि इसको स्पेसिफाइड पर्सन कहते हैं। क्लियर हो गया? स्पेसिफाइड पर्सन। मैं जो एग्जांपल दूंगा मैं वो पार्टनर और फर्म की दूंगा, तो समझ लेना वो स्पेसिफाइड पर्सन। मैं एओपी की एग्जांपल नहीं दूंगा, इसलिए मैं पार्टनर के बारे में बार बार बोलूंगा, लेकिन वो होगा स्पेसिफाइड पर्सन। क्लियर हो गया? स्पेसिफाइड एंटिटी, स्पेसिफाइड एंटिटी मींस फर्म और एओपी बीओआई, या तो वो फर्म है एंटिटी या एओपी बीओआई है, इसलिए इसका नाम स्पेसिफाइड एंटिटी मैंने रख दिया। क्लियर हो गया जी? अब जरा ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। वेयर अ स्पेसिफाइड पर्सन, मैं इसका नाम पार्टनर रख रहा हूं, मेंबर को छोड़ रहा हूं, ठीक है। रिसीव्स, प्लीज नोट द वर्ड रिसीव्स, या ट्रांसफर वर्ड नहीं है, रिसीव्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड, एनी कैपिटल एसेट, और प्लीज नोट द वर्ड कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड from the specified entity, from the specified entity, मैं कहूंगा पार्टनर से, फर्म से नहीं, पार्टनर को फर्म से मिला क्या? कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कनेक्शन विद द डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन की वजह से या रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उसको कोई कैपिटल एसेट मिली या क्या मिला? Stock in trade. Then such amount shall be deemed to be, such amount which is received, such asset, money or asset which is, sorry, such capital asset or stock in trade which is received shall be deemed to be a transfer of the previous year in which it is received by the partner from the firm. क्या कह रहा है? अगर मुझे डिसोल्यूशन के टाइम पे या रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में कोई कैपिटल एसेट मिली या मुझे कोई स्टॉक इन ट्रेड मिला, किससे? फर्म से, इन द प्रीवियस ईयर, तो वो क्या माना जाएगा? इट विल बी डीम्ड टू बी ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन। ये स्पेसिफाइड पर्सन के हाथ में ट्रांसफर मान लिया जाएगा, ये ट्रांसफर मान लिया जाएगा एज इफ पार्टनरशिप ने उसको ट्रांसफर किया। प्लीज नोट द वर्ड डीम्ड ट्रांसफर। कोहली साहब, डीम्ड ट्रांसफर, वैसे ट्रांसफर की डेफिनेशन तो सेक्शन 2 क्लॉज 47 में है, वहां लिखा ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, रिलिक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपलसरी एक्विजिशन, उसको तो उन्होंने कह दिया वो ट्रांसफर है। मैंने तो एक नया वर्ड कॉइन किया है, डीम्ड ट्रांसफर। किसके हाथ में माना जाएगा कोहली साहब? फर्म के हाथ में, उस स्पेसिफाइड एंटिटी के हाथ में वो डीम्ड। किस साल माना जाएगा? इन द प्रीवियस ईयर in which that capital asset or stock in trade is received by the partner। ये क्लियर हो गया? ये पहले क्लियर हो गया? आगे कहता है the profit or gain from the deemed transfer of such capital asset or stock in trade
shall be deemed to be the income of the specified person of that partner, shall be deemed to be income. Sorry. No, I'm sorry. Shall be deemed to be the income. Shall be deemed to be income. Please note the word. Shall be deemed to be the income and chargeable to, shall be deemed to the income of the previous year in which it is received by the partner. और B में कहता है and chargeable to income tax either as capital gain or as business income in the hands of the, not the partner, in the hands of the specified entity, that is firm. अब जरा ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना. अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं. डिसोल्यूशन हुआ, मैं रिकंस्टिट्यूशन बाद में लेता हूं. डिसोल्यूशन हुआ, उस वक्त पार्टनर को रिसीव हुआ कोई कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड मिला. किससे मिला? फर्म से, एंटिटी से, मतलब फर्म से मिला. तो वो डीम्ड ट्रांसफर माना जाएगा. किसके हाथ में? किसके हाथ में? फर्म के हाथ. वो डीम्ड ट्रांसफर माना जाएगा फर्म के हाथ. किस साल का? जिस साल वो पैसा एसेट रिसीव हुई. या प्लीज नोट द वर्ड, दो चीजें बोली है, कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड. हो गया. फिर आगे लिखता है कि ये डीम्ड ट्रांसफर जो चीज है ये डीम्ड इनकम मानी जाएगी. ये क्या मानी जाएगी? डीम्ड इनकम. किस साल की? ऑफ द प्रीवियस ईयर in which that capital asset or stock in trade is received by the partner. हो गया. And chargeable to income tax. अब दूसरा कह रहा है chargeable to income tax किसके हाथ में? In the hands of the firm, either under the head capital gain or business income. Capital gain कौन सा होगा? वो capital asset. और business income कौन सी होगी? Stock in trade. ये पहले समझ में आ गया. As per the provisions applicable. अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा सतीश जी, तो मैं सिंपलीफाई कर करके चलूंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए. सपोज मैं फर्म की डिसोल्यूशन हो गई सर. मुझे एक कैपिटल एसेट मिली, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी. वो तो होगा, कैपिटल एसेट मिली, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट. सपोज वो कैपिटल एसेट बुक में 4 करोड़ की थी, फेयर मार्केट वैल्यू 6 करोड़. मुझे 6 करोड़ रुपया ये मिला और राजीव जी 1.5 करोड़ का स्टॉक मिल गया, वो भी मार्केट वैल्यू से. पहले दोनों मार्केट वैल्यू होगी इसकी. तो मुझे कितना मिला राजीव जी? 6 करोड़ की एसेट और 1.5 करोड़ का क्या मिला? स्टॉक इन ट्रेड, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. वो कहता जी अब कैपिटल गेन के चैप्टर में जाओ. चले गए. फर्म को कैपिटल गेन लगेगा. कैसे लगेगा? क्योंकि इन द हैंड्स ऑफ द फर्म, फर्म देखेगी वो जो एसेट 6 करोड़ की दी है उसकी कॉस्ट क्या थी. कॉस्ट क्या थी? अगर 2 करोड़ थी, अगर डेप्रिशिएबल है तो फिर तो सेक्शन 50 हो जाएगा. एम आई राइट? अगर नॉन डेप्रिशिएबल है तो इंडेक्सेशन भी होगा. अगर लॉन्ग टर्म है तो आप कैपिटल गेन निकालेंगे फर्म के हाथ में. कंसीडरेशन प्राइस क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट एसेट. ठीक है जी, माइनस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ दैट एसेट. क्लियर हो गया? जो 45(1) में होता है, 45(1) यही कहता है ना. 45(1) रेड विद 48 सेक्शन क्या कहता है? फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन यू विल हैव टू डिडक्ट फ्रॉम कंसीडरेशन प्राइस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर. क्योंकि ये कैपिटल गेन के प्रोविजन में जाना है, 45(1) में जाना है. मेरी कंसीडरेशन प्राइस क्या है सर? कितना बोला था मैंने? 6 करोड़. 6 करोड़. किसको टैक्स लगना है जगजीत जी? फर्म को. 6 करोड़ माइनस कॉस्ट ऑफ द फर्म, या व्हाट यू कॉल इंडेक्स कॉस्ट. और मेरा कैपिटल गेन टैक्स फर्म को लग जाएगा. किस साल लगेगा? इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड बाय द पार्टनर. क्लियर हो गया? अब आइए सेक्शन 28 में जगजीत जी 1.5 करोड़ की मार्केट वैल्यू का स्टॉक मिलेगा और कॉस्ट उसकी 1 करोड़ 20 लाख थी. कॉस्ट इन्वेंट्री तो कॉस्ट में होती है ना सर जी. तो 1.5 करोड़ माइनस 1.20 30 लाख पे मुझे बिजनेस इनकम टैक्स देना पड़ेगा. किसको? उस फर्म को. उस फर्म को देना. ये क्लियर हुआ सर? ये क्लियर हुआ?
अभी मैंने डिसोल्यूशन किया है, अभी मैंने कुछ और नहीं किया है। सवाल है कोहली साहब? सर बाय डिफॉल्ट और लॉस का भी बेनिफिट मिल जाएगा। किसका जी? लॉस का। हाँ बिल्कुल मिलेगा। अगर लॉस है तो अरे फेयर मार्केट वैल्यू होगी तो लॉस तो बहुत ही कम चांस है यार। सर नहीं सर, और 20% सर्कल रेट कम हो गया सर, बड़ा भारी चीज है। कौन सा 20% हो गया जी? सर्कल रेट कम हो गया ना, अगर प्राइस कम हो गया आज की डेट में, एफएम तो हो जाएगी सर। अरे जून तक है मेरे भाई। कोई और सर कोहली साहब जून तक है। सर ये प्लानिंग कर रहे हैं ना, देखो आगे भी तो करना है। सर्कल रेट जो 20% कम हुआ जून तक है, जून के बाद नहीं है। केजरीवाल जी है इनका नाम। एक्सटेंड हो जाएगा 30 जून तक ही है वो। कभी सोचो 20% कम हो गया। और वो जो दूसरा है वो तो और भी कम है। अगर जो हमने वो फ्लैटों का किया है रेजिडेंशियल, वो तो सिर्फ बिल्डर के हाथ में, अदरवाइज 10% ही है वो। तुम आप तो सिर्फ बिल्डिंग ले रहे हैं सर, आप तो लैंड ही ले रहे हैं। और भी तो एसेट हो सकती है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू, शेयर भी तो हो सकते हैं जो आपने दिए सर। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन साहब, कैपिटल एसेट शेयर भी हो सकते हैं। हाँ जी सर। बिल्डिंग शेयर सब कुछ हो सकता है। पहले पॉइंट समझ आइए फिर दूसरा डिस्कशन। पहले समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? यस सर। कि जब भी पार्टनर को कोई कैपिटल एसेट मिली या स्टॉक इन ट्रेड मिला, वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेकर उसका टैक्स निकालिए फर्म के हाथ में। आइदर अंडर कैपिटल गेन अगर कैपिटल एसेट मिली है, दूसरा अंडर बिजनेस इनकम अगर स्टॉक इन ट्रेड मिला है। किस साल निकालेंगे? जिस साल उस पार्टनर को आपने वो एसेट दी, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन नहीं, जिस वक्त वो दी उस वक्त निकाल। ये पहले क्लियर हो गया तो आगे बढ़ो। अगर ये तो बहुत सिंपल था, इसे मैंने पहले ये कर दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझा दिया। 9B रेड विद 45(1) एंड रेड विद सेक्शन 28। ये क्लियर हो गया? यस सर। सर म्यूट हो गया सर। Am I there? यस सर यस। वो कोई डिस्कनेक्ट हुआ था एक सेकंड के लिए। सुनिए, 9B कैपिटल गेन टैक्स नहीं निकाल रहा, 9B बिजनेस इनकम नहीं निकाल रहा। 9B तो एक ही बात करता है कि ये डीम्ड ट्रांसफर माना जाएगा और चार्जेबल टू टैक्स होगा और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी। आप समझ में आ गया सर? इसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी। 9B तो सिर्फ इतना ही कहता है, टैक्स निकालने के लिए तो आपको 45(1) में जाना पड़ेगा और 28 में जाना पड़ेगा अगर कैपिटल अगर स्टॉक इन ट्रेड। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक आ गया। अब आगे बढ़िए। दूसरा था रिकॉन्स्टिट्यूशन। जरा ध्यान से सुनिए। पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है वो कहता है जी, वन और मोर देन वन पार्टनर सीजेस टू एग्जिस्ट। लेकिन फर्म चल रही। पहला है रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक या एक से ज्यादा पार्टनर सीजेस टू एग्जिस्ट मींस रिटायर हो गया। सीजेस टू एग्जिस्ट में रिटायरमेंट भी नहीं है, इसमें डेथ भी आ जाएगी अपने आप। सीजेस टू एग्जिस्ट में रिटायरमेंट नहीं होता हमेशा, डेथ भी तो होगी राजेश जी। ही सीजेस टू एग्जिस्ट, बाकी फर्म चल रही है, मतलब उसमें एक दो पार्टनर और भी होंगे। अगर एक हो गया तो मतलब खत्म हो जाएगी ना पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन हो जाएगी। अगर आप दो ही थे, एक की डेथ हो गई तो वैसे ही खत्म हो गई। आप दो रिटायर हो रहे हैं और 4 थे तो भी फर्म कंटिन्यू करेगी। अगर 3 ही थे तो डिसोल्यूशन माना जाएगा। ठीक है सर? सीजेस टू एग्जिस्ट। दूसरा, वन और मोर देन वन पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप में आ गए और देयर इज ऑलरेडी वन और मोर देन वन पार्टनर विच इज ऑलरेडी देयर। वो पहले से ही है। जो पुराना है उसमें कम से कम एक या दो पार्टनर पुराने वाले। और तीसरा, कोई रिटायर नहीं हुआ, कोई एडमिशन नहीं हुई राजेश जी, सिर्फ आपस में रिकॉन्स्टिट्यूशन करके प्रॉफिट शेयरिंग बांटनी। मतलब जैसा आपका पहले सपोज करिए 3 पार्टनर थे, 1/3 1/3 1/3। अब आपने आपस में क्या करा, 40% 30% 30% या 40% 40% 20%, 40% 25% 20। आपने प्रॉफिट रेशियो बदल दी, लेकिन पार्टनरशिप में कोई चेंज नहीं। ठीक है सर? इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अरे 9B कहता है अगर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में अगर कोई एसेट मिली है या स्टॉक इन ट्रेड मिला है तो वो भी डीम ट्रांसफर माना जाए। जरा ध्यान से सुनिए जगजीत जी, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में कोई एसेट नहीं मिली है,
कोई स्टॉक इन ट्रेड नहीं मिला तो फिर ये सेक्शन नहीं लगेगा। ये सेक्शन तो तभी लगेगा जब रिटायरमेंट के टाइम पे कोई एसेट मिली या क्या मिला, कोई स्टॉक इन ट्रेड या एडमिशन हुई और जो दूसरा पार्टनर है जो ऑलरेडी था उसको कोई स्टॉक दिया गया या कोई एसेट दी, स्टॉक और एसेट दी, कैपिटल एसेट। कैश कैपिटल एसेट नहीं होता। यहां पर ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। या कुछ भी नहीं हुआ, कोई पार्टनर रिटायर नहीं हुआ, एडमिट नहीं हुआ, लेकिन आपस में आपने, फर्म ने उसको उसके बदले, जिसको नया पार्टनर को आपस में जब रेशो बदली तो एक दूसरे को एसेट दे दी, फर्म ने दी, एसेट दे दी और स्टॉक दे दी, तब रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है सर। इस केस में भी 45(1) लगेगा और 28 लगेगा। ये क्लियर हो गया। लेकिन अब रुकना, एक नया सेक्शन डाला 45(4). अभी तक तो मैंने बोला था 9B रेड विद 45(1) और रेड विद 28। अब इसको भूल जाओ, अब 9B भी भूल जाओ, 45(1) भी भूल जाओ, 28 भी भूल जाओ। अब जरा वर्ड सुनना 45(4) में क्या लिखा है, ध्यान से सुनना सर सारे। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर सेक्शन 45(1). कहता 45(1) में लिखा है कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। कहता ये ट्रांसफर तो ही नहीं। अब क्या वर्ड यूज करता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग 45(1) वेयर अ स्पेसिफाइड पर्सन receives during the previous year। अब वर्ड सुनना जगजीत जी, एनी मनी और कैपिटल एसेट। या वर्ड क्या है, मनी और कैपिटल एसेट। 9B में वर्ड क्या था, कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड। या स्टॉक इन ट्रेड नहीं है जी। और क्या 9B में मनी थी राजेश जी? मनी नहीं थी, मनी नहीं थी। यहां पर मनी है और कैपिटल एसेट है। रिसीव्ड बाय द स्पेसिफाइड पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम द स्पेसिफाइड एंटिटी, फर्म से मिली, इन द कोर्स ऑफ, इन कनेक्शन विद रिकॉन्स्टिट्यूशन। राजेश जी यहां रिकॉन्स्टिट्यूशन है, यहां डिसोल्यूशन नहीं है। 9B में डिसोल्यूशन भी था और रिकॉन्स्टिट्यूशन है, या सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन है। रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मनी मिली तो जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट कैपिटल एसेट है उसके ऊपर कैपिटल गेन कैसे निकालना, सुनिए। द कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द फर्म। और कैपिटल गेन का एक फॉर्मूला दिया है, A = B + C - D। राजेश जी पढ़ रहे हैं कि A = B + C - D तो है ही है। हाँ जी यही है, A = B + C - D। A का मतलब है कैपिटल गेन, वो तो निकालना है ना हमने। B का क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ मनी, कितने पैसे आपको मिले मनी में। C का क्या मतलब है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, कैपिटल एसेट। -D का क्या मतलब है कि आपका कैपिटल बैलेंस क्या, कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस था, वो माइनस। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, अभी 9B भूल जाना। मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं रिटायर हो रहा हूं, ये क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन है, यहां पर डिसोल्यूशन नहीं। मैं रिटायर हो रहा हूं, मेरा कैपिटल 5 करोड़ रुपए का है, आउटस्टैंडिंग 5 करोड़, और उसमें लिख दिया ऑल काइंड्स ऑफ कैपिटल। वो करंट अकाउंट भी बीच में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कोई कहता है अरे वो फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जो बातें हैं ना वो अकाउंटेंसी की। या जो करंट अकाउंट है वो भी कैपिटल, लोन नहीं होता, करंट अकाउंट तो कैपिटल ही है ना सर। वो कैपिटल सपोज करो मेरा 5 करोड़ का है राजेश जी, मुझे एक कैपिटल एसेट दे दी 6 करोड़, साथ में पैसे दे दिए 2 करोड़, तो ए क्या होगा, A = 2 करोड़ + 6 करोड़ 8 करोड़ -5 करोड़, कितने हो गए, 3 करोड़। 3 करोड़। ये 3 करोड़ पे टैक्स फर्म देगी, मैं नहीं दूंगा, फर्म देगी। मुझे अपने कैपिटल से ज्यादा पैसे मिले। जरा ध्यान से सुनते रहना, और जरा ध्यान से सुनो, मेरा कैपिटल कितना है, 5 करोड़। 5 करोड़। ठीक है जी। एसेट कितने की मिली, 6 करोड़। 8 करोड़ की। 6 करोड़ की एसेट, 2 2 करोड़ का कैश, 2 करोड़ की मनी। तो 2B हो गया 2, C हो गया 6 करोड़। A = B + C, 2 + 6 8 माइनस कैपिटल 5 करोड़।
कितना आया कैपिटल गेन? 3 करोड़। अभी तक ये बताया नहीं कि शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा, कैपिटल कौन सी ली जाएगी, वो कहते हैं हम बता देंगे, रूल अमेंडमेंट और आएगी सर अभी। वो अमेंडमेंट नहीं है, रूल में आ जाए। वो सेक्शन 2 क्लॉज 42A में जहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल ऐसे डिफाइन है ना, वहां पर उनके पास पावर है सब सेक्शन 2 में टू टेल यू कि कौन लॉन्ग होगा क्या शॉर्ट होगा। अरे वो बड़े समझदार है सर, ऐसी बात नहीं। तो ये पहला समझ में आ गया। 3 करोड़ कैपिटल गेन हो गया, किसके हाथ में? फर्म के हाथ में। फर्म क्या? फर्म ने 3 करोड़ पे टैक्स दिया। राजेश जी, इस 3 करोड़ का क्या होगा? मैंने तो दिया नहीं, फर्म ने दिया है, पार्टनर ने तो नहीं दिया। कहता है ये जो 3 करोड़ एक्स्ट्रा दिया है ना, फ्यूचर में जो एसेट बेचोगे वो कॉस्ट वहां से लेस हो जाएगी 3। अरे जब आगे होगा, और कैसे फ्यूचर में उसको एलोकेट करोगे डिफरेंट एसेट का, वो हम बताएंगे। अभी तो आपको वो सेक्शन 48 में एक क्लॉज 3 आई डाल। 48 में क्या किया जगजीत जी कि ये तो 3 करोड़ रुपया कैपिटल गेन टैक्स लगा ना, किसको लगा? फर्म को। वो 3 करोड़ रुपया फ्यूचर की कॉस्ट मान ली जाएगी। जब फ्यूचर में आप एसेट और कोई बेचागा फर्म, तो उसमें 3 करोड़ रुपया ये कॉस्ट जोड़ लेंगे। कैसे इसको एलोकेट करेंगे वेरियस एसेट को, वो बता दें। तो सारा एक ही एसेट में तो नहीं लेंगे ना, कई एसेट होंगी, वो 48 में डाल दें। चलो वो तो छोड़। लेकिन राजेश जी एक बात तो सुनो, अरे भैया सेक्शन 9B कहता है ये ट्रांसफर है, तो 9B भी तो लगेगा। 9B में कहता है वहां पर रिटायरमेंट है, हाँ जी है। तो 9B में क्या कहता है? कैपिटल एसेट। मनी तो कहता नहीं है। तो कैपिटल एसेट कितने की थी? 6 करोड़ की। Am I right or wrong? जी सर, जी 6 करोड़ की थी, मनी नहीं है, 6 करोड़ की थी। अभी 6 करोड़ का टैक्स निकालो 45(1) में। फर्म को टैक्स दो लगेंगे, ये 45(1) में लगेगा। 6 करोड़ माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वो कैपिटल गेन टैक्स कौन देगा? वो भी फर्म देगा। कौन से सेक्शन में? 45(1) में। ये कैपिटल गेन टैक्स कौन देगा? फर्म देगा अंडर 45(4). 45(4) में तो जो अमाउंट कैपिटल से ऊपर है वो कैपिटल गेन। लेकिन 45(1) में जो अमाउंट कैपिटल गेन कैसे निकालना है? वो कॉस्ट को लेस करके उस एसेट तो निकाला। यह समझ में आ गया? अभी तो पागल होना है, अभी और पागल करता हूं। राजेश जी सुनिए, राजेश जी को आ गई वो आवाज, क्योंकि हम लग रहा है ये क्या नींद आ रही है। तो सुनो जगजीत जी सुनो, मैं रिटायर हो रहा हूं। अदर एग्जांपल सुन लेना। मेरा 5 करोड़ का कैपिटल है, ये अलग रखता। मुझे कैश दिया गया 2 करोड़, ठीक है सर। मुझे एसेट दी गई मार्केट वैल्यू 6 करोड़ और मुझे स्टॉक दिया गया 1.5 करोड़। दोबारा गुनिए, 6 करोड़ की एसेट, 2 करोड़ कैश और 1.5 करोड़ स्टॉक। साढ़े 9 हो गया। रुक जाइए, पहले 45(4) में जाओ। 45(4) में बी क्या लेंगे? 2 करोड़ कैश। सी क्या लेंगे? 6 करोड़। 6 है, कितना लिया? स्टॉक 6 का, एसेट 6 की ली थी ना, 6 करोड़ जी। 8 करोड़। क्या मनी वहां पर वो लेंगे स्टॉक? जी नहीं, वहां स्टॉक नहीं लेंगे। 8 करोड़ माइनस 5 करोड़ कैपिटल, 3 करोड़ रुपया कैपिटल गेन फर्म देगा। समझ आ गया? 3 करोड़ कैपिटल गेन फर्म देगा 45(4) में। अब चले जाओ 9B में। 9B में क्या लेना है? मनी नहीं लेनी, मनी नहीं लेनी। स्टॉक हाँ, तो 6 करोड़ की एसेट और 1.5 करोड़ का स्टॉक इन ट्रेड। 7.5। कोहली साहब देख रहे हैं, मनी नहीं लेनी वहां। 7.5 करोड़। अब 2 जगह टैक्स निकालना पड़ेगा। 1.5 करोड़ माइनस द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक 28 में जाइए, फर्म को लगेगा। और 6 करोड़ माइनस इंडेक्स कॉस्ट या कॉस्ट 45(1) में। तो समझ में आया? कुछ समझ में आया? घूम गया ना दिमाग? कुछ समझ में आया सर? दोनों सेक्शन लग रहे हैं। अगर एसेट दी है और ये कब लगेंगे दोनों सेक्शन? कोहली साहब जब रिटायरमेंट है, रिकॉन्स्टिट्यूशन है, डिसोल्यूशन में नहीं है। डिसोल्यूशन में 45(4) है ही नहीं। डिसोल्यूशन में 9B रेड विद 45(1) एंड 28 है। जगजीत जी, डिसोल्यूशन में 9B रेड विद 45(1) एंड 28 है। रिकॉन्स्टिट्यूशन में 9B
45(1), 28A and also 45(4). चारों लगे 45(4) में कैपिटल लेस होकर कैपिटल गेन निकलना है। 9B में 45(1) और वो लगना है 28, और जो कैपिटल गेन निकला 45(4) में वो कॉस्ट मान ली जाएगी फ्यूचर की एसेट। मर गया मैं तो। फ्यूचर की एसेट जब बेचूंगा तभी तो कॉस्ट होगी, ये तो कॉस्ट तो पड़ी रही हवा में। समझ में कुछ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो जितनी एग्जाम्पल को उतनी समझा दो, जितनी एग्जाम्पल को उतनी समझा। सर जब मैंने पहली बार किया मेरा दिमाग घूम गया, भाई ये है क्या, मुझे पता कैसे लगा। वो 45(4) में नीचे एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में लिखा है कि दिस कैपिटल गेन विल बी इन एडिशन टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9B रेड विद 45। मैं तो मर गया, ये तो दो कैपिटल गेन हो गए। एक कैपिटल गेन कैपिटल से लेस करके जो निकला 45(4) में, दूसरा कैपिटल गेन 9B रेड विद सेक्शन 45(1) एंड रेड विद सेक्शन 28। अब जो एग्जाम्पल किसी ने पूछनी है, जो सवाल पूछना पूछते जाए, जो पूछना पूछते जाए। इसी को लोग इतने सवाल पूछेंगे कि पागल हो जाएंगे। समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा भी समझा दूंगा, लेकिन 9B और 45(4) तभी लगेगा जब रिटायरमेंट है, रिकॉन्स्टिट्यूशन है। अगर डिसोल्यूशन है तो 45(4) नहीं लगेगा, ओनली वन सेक्शन 9B रेड विद 45(1) एंड 28। Are you getting my point? डिसोल्यूशन करो या कन्वर्जन टू अ प्राइवेट कंपनी करो, हैं जी? या डिसोल्यूशन करो या कन्वर्जन टू अ प्राइवेट कंपनी करो। सर वो प्राइवेट कंपनी में जब होता है मेरे भाई सर, वो तभी होता है जब 60 लाख का टर्नओवर हो, नहीं तो वो रगड़ा पड़ जाएगा। रगड़ा पड़ जाएगा। हाँ, आपको पहले मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं है। कोहली साहब आप घबरा गए। मेरी फर्म में मेरे 3 भाई हैं, मैं अपना कैपिटल लेके चला जाता हूँ उतना ही अमाउंट, तो किस बात का टैक्स हो, किस बात का टैक्स? कुछ नहीं, मनी पूरी ली उतनी, तो बी तो मेरी पूरी है और कैपिटल लेस हो गया, एसेट कोई ली नहीं तो रिटायरमेंट हो गया। अब आ जाइए 9B में, 9B में कोई मनी ली है तो कुछ नहीं होगा, एसेट होगी तभी तो होगा, मनी ली तो कुछ नहीं होगा। अपना मनी का अमाउंट लिया तो कुछ होना ही नहीं। झगड़ा जब पड़ेगा जब एसेट लेंगे। एसेट देगा तो पहले भी 45(4) था सर, एसेट तो पहले भी 45(4) था मेरे भाई सतीश जी, 45(4) था। तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप अपना कैपिटल लेके बाहर हो जाते हो तो कुछ नहीं है। अगर अपना कैपिटल के साथ आप कोई एसेट भी कीमत, एसेट महंगी लेते हो तो 2 जगह टैक्स लगेगा। आप कैपिटल लेते हुए एसेट लेते हो तो 2 जगह लगेगा, 45(4) में भी लगेगा और 9B रेड विद 45(1) भी लगेगा। और मनी लेते हो तो मनी में 9B 45(1) नहीं लगेगा, सिर्फ 45(4) लगेगा। अब सवाल पूछिए सर। सर सवाल पूछिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सवाल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होगा तो है जी सर, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होगा तो? शेयरिंग में चेंज करके किसी को कोई पैसा दिया नहीं, कुछ कोई एसेट दी ना, डीम्ड थोड़ी है, उसको देना है पार्टनर को। ओके, डीम्ड का ही रिसीव्ड, हैज ही रिसीव्ड एनी एसेट, हैज ही रिसीव्ड एनी स्टॉक इन ट्रेड? इफ ही हैज नॉट रिसीव्ड देयर इज नो प्रॉब्लम। अब आ रहे हैं सवाल, आ रहे हैं ना दिमाग में। If he has received, then only you have to say, na? Received by whom? By the partner. He is not received it. If it is received by the partner, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, फर्म ने उस पार्टनर को एसेट दे दी, फर्म ने उस पार्टनर को स्टॉक दे दिया, तो ही तो होगा 45(1) और 9B। अगर वो रिसीव नहीं हुआ और ये अगर वो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ और आज फर्म ने उसको कैश दे दिया और एसेट दे दी, एसेट दी तो 45(4) वो भी लगेगा 9B। सिर्फ कैश दिया, अगर कैश ज्यादा नहीं दिया कैपिटल से तो कुछ नहीं होना। कैपिटल से ज्यादा दिया है अब आएगी ब्रो, देगी और फर्म टैक्स लेके आगे उसकी कॉस्ट में जोड़ देगी अपनी, बस खत्म। अब बताइए क्या है क्वेश्चन? सर अगर पार्टनर सेम रहते हैं और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर देते हैं आपस में, कुछ नहीं होगा। अगर तो आपस में लेते तो फर्म कुछ नहीं देती तो कुछ नहीं होगा। उसमें बेशक दे रही है क्या? होंगे। जिस पार्टनर का शेयर कम हुआ, क्या फर्म उसको कोई एसेट दे रही है? नो, नहीं, कुछ नहीं दे रही। तो फिर खत्म हो गई। जब देगी तभी। इट इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर व्हेन दैट इज रिसीव्ड। कहां रिसीव हुआ? हैव यू रिसीव्ड एनी एसेट? हैव यू रिसीव्ड एनी मनी?
सर नाउ कम टू क्वेश्चन सर। एक हमारे अजय गुप्ता जी इज आस्किंग सर कि इन व्यू ऑफ इंक्रीज इन लिमिट ऑफ 5 lakh कैन समवन प्लान लाइक 2.5 lakh अंडर ईपीएफ प्लस 1.5 lakh अंडर पीपीएफ टू स्टिल रिमेन आउट ऑफ पीपीएफ का कोई लेना देना नहीं है इसका। पीपीएफ तो अलग है, 1.5 लाख, उसका कोई वो तो अलग अलग फंड है। 1.5 लाख तो 1.5 लाख ही रहना है एटीसी में। अब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आप करना चाहते हैं 2.5 लाख रुपए, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं करे, एम्प्लॉयर करेगा, सॉरी एम्प्लॉयर करे, एम्प्लॉयर नहीं करेगा तभी तो 5 है। वो 1.5 को छोड़ दो, 1.5 का कोई लेना देना नहीं, 1.5 का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एम्प्लॉय का केस है। 1.5 तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, एम्प्लॉय भी कर सकता है। 1.5 को मत लीचो इसमें। सर वो पुराने बैलेंस पर तो टैक्स फ्री रहेगा ना ना, वो नहीं, जो नया कंट्रीब्यूशन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा। पुराना एक टैक्स तो दे दिया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, एक ऑलरेडी नोटिफिकेशन दे दिया 11/21, वो देख लो, उस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। हाँ, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन संजीव जैन जी पूछ रहे हैं रेवाड़ी से कि एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट की ऑडिट रिपोर्ट तो फाइल हो गई, एजुकेशन सोसाइटी की, सॉरी, बट आईटीआर फाइल करना भूल गए। धन्यवाद, धन्यवाद, नहीं मिलेगा। सेक्शन 37 कहता है आईटीआर भी ड्यू डेट तक भरनी पड़ेगी, नहीं तो एग्जामिशन नहीं मिलेगी। अब उसका कोई रेमेडी सर? आईटीआर ड्यू डेट तक, और 10 भी उससे पहले एक आदमी ने क्या किया राजेश जी, आईटीआर भर दी सवेरे 11 बजे और 10 वीक लोड किया शाम को 6 बजे, उसको एग्जामिशन नहीं दी गई। वो कहता है पहले 10 वी भरोगे, चाहे वो सेम डे हो, और फिर आईटीआर, और एक दिन भी डिले होगी तो आपको एग्जामिशन नहीं मिलेगा। सर ऐसा ही कुछ एफटीसी में भी है, वो जो सेक्शन 67 फॉर्म निकाला है जो पिछले साल। कौन सा 67? एफटीसी क्लेम करना, फॉरेन का जो क्लेम करना है, फॉरेन टैक्स। वो तो सर, वो तो आप किसकी बात कर रहे हैं, जो रेमिटेंस करी है? नहीं, जो एम्प्लॉई बाहर चला गया और बाहर के एम्प्लॉयर में इंडिया से बाहर टैक्स कटा, उसको जो एफटीसी क्लेम करना है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए इंडिया में, फॉरेन टैक्स क्रेडिट की बात करें। फॉरेन टैक्स क्रेडिट। हाँ, एक मिनट, देखिए, क्रेडिट का इससे कोई लेना देना नहीं। वो चैरिटेबल ट्रस्ट में तो लिखा कि यू हैव टू फाइल रिटर्न बिफोर ड्यू डेट, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एग्जेम्पशन। यहाँ पर रिटर्न डेट फाइल करते तो लॉसेस नहीं मिलते, आपको मालूम है, या डिडक्शन कहीं नहीं मिलती 80IA से ऑनवर्ड्स। 80C तो मिलती है ना, 80C 80G तक मिलता है, लेकिन वो वहां पर उन्होंने ये लिखा हुआ है, जहाँ आप 80 सेक्शन पढ़ेंगे 80AC, वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कब नहीं मिलेगी। तो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ एग्जेम्पशन या लॉसेस नहीं मिलते, बाकी तो रिडक्शन मिलती है ना। तो ये तो टैक्स क्रेडिट है, टैक्स क्रेडिट का तो रिटर्न से कोई लेना देना नहीं, ये लॉस थोड़ी है। फॉर्म 67 फाइल करना है, अगर नहीं किया तो उन्होंने वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं दिया। आपने लेट नहीं किया, उस दिन जब तक रिटर्न भरी उसके साथ करना था ना। हाँ, वो नहीं किया। हाँ, वो नहीं किया तो वो तो फिर क्रेडिट कहाँ से दे? तो क्रेडिट आज अगर उसको भर देते हैं फॉर्म 67 को तो मिल जाएगा। ये 119(2) में जाना पड़ेगा, उसे क्लियर कराना पड़ेगा कि क्या कारण है, अदरवाइज तो आपको क्लेम तो उसी बद करना। नाउ कम टू क्वेश्चन। मैडम का क्वेश्चन है, मैडम नीरू अग्निहोत्री जी पूछ रही हैं कि सर वी कुड नॉट फाइल वन रिटर्न ऑफ ट्रस्ट बिकॉज ऑफ स्लो साइट, व्हाट इज द ऑप्शन नाउ टू फाइल, व्हाट इज द रेमेडी? 119(2) में जाकर कंसेशन की कोशिश करिए कि सर लेट रिटर्न रेट आ गए तो हमें अलाउ कर दिया जाए। एक सर्कुलर है, उस सर्कुलर पता नहीं 8 बड़ा कुछ है ऐसे, उसमें जाकर फिर कमिश्नर को या बोर्ड को अप्रोच करना पड़ता है टू गिव दिस बेनिफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन संजीव जी का क्वेश्चन है सर ये कि एक व्यक्ति को कैंसर था, लेकिन उन्हें 44 AB में 27 मार्च को ऑडिट हुई, 28 तारीख को अप्रूव्ड हो गई, वो ऑडिट रिपोर्ट फाइल भी हो गई, लेकिन दे कुड नॉट फाइल द रिटर्न ITR अप टू 31 मार्च। ITR आदमी ने फाइल करनी है कि ऑनलाइन करनी है? किसी ने आदमी से क्या लेना देना डेथ से? नहीं, ऑनलाइन ही फाइल करनी है, लेकिन स्लो साइट की वजह से नहीं कर पाए। है जी, स्लो साइट करने की होने की वजह से दे कुड नॉट फाइल द रिटर्न, साइट क्रैश हो गई थी ना। ये लास्ट डे कोई क्रैश हुई है सर। हाँ जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो डेट बढ़ा दें, मान नहीं रहे, लेकिन इसका कुछ नहीं होगा। 148 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फांसी थोड़ी लग गई है, रिटर्न फाइल नहीं करी थी। 148 में अगर होगा कोई होगा, नहीं तो आपने टैक्स दिया हुआ तो क्या दिक्कत? टैक्स दिया तो कोई दिक्कत नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हितेश मर्चेंट जी पूछ रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टीडीएस प्रोविजन फॉर डिडक्टिंग टैक्स एट डबल रेट्स with effect from 1st July. हाँ It जी। is not absolutely unfair. If HUF having income only from bank FDR having below threshold income has not filed tax return for last 2 years and उससे rightly क्या है, वो लॉ कहता है ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, ही इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हेन वो Okay. रिक्वायर्ड होगा तभी तो वो 2 साल की नहीं फाइल करी। इफ इज नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड वाला थोड़ी है। और वो टीडीएस कटा है तो उसने वो रिटर्न तो फाइल करी होगी टू टेक द रिफंड। अरे रिफंड ही लेना उसने, नहीं करते सर बहुत सारे लोग। जी 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 अरे वो केस 50,000 का है ना सर, 2 साल की रिटर्न नहीं बनी, 50,000 का टीडीएस है। तो 50,000 का टीडीएस होगा तो खुद ही लेगा यार। 50,000 वर्ड इसीलिए लिखा है, टीडीएस 50,000 या टीसीएस 50,000। अरे जी सर। 50,000 भी सरकार को छोड़ रहा है तो कोई और इंटेंशन है, तो वो ये इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने करा है। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेश समकारिया जी का कि जो ये लोग सर विवाद टू विश्वास में 125% लगा रहे हैं और कुछ हाई कोर्ट ने सर कह दिया कि 100% वो तो मान गए हैं, जमा वो दे दिया उन्होंने, 100% लगा रहे हैं, आ चुका है वो, आ गया। वो तो आ चुका है, वो तो दे हैव एक्सेप्टेड इट, दे चार्ज 100%। वैसे एक भी सवाल किसी ने पार्टनरशिप में पूछा, बड़े लोग समझदार हैं, यहाँ पहले लेक्चर सुन चुके हैं, मेरे तो समझ में नहीं आई, मैं तो थैंक यू करूंगा सब। सर नेक्स्ट क्वेश्चन वेद प्रकाश सोनी जी, what amendment has been made in the definition of liable to tax in the finance bill 2021? What would be impact on this on an Indian citizen working and earning in Dubai and who is not मैंने बोला ना visiting- कि अगर वो दुबई वाले का इनकम इंडिया में टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है और दुबई में उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, तो वो डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा इंडिया का। अगर वो सिटीजन है, डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा राकेश जी, क्योंकि उसके राजेश जी उसके बाद वो ट्रीटी देखेंगे, टाई ब्रेकर रूल लगेगा, और टाई ब्रेकर रूल लगने के बाद ही तो पता लगेगा वो एक कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है, दोनों का नहीं हो सकता। और फिर वो अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी जब तक वो फॉरेन इनकम कोई ऐसे बिजनेस से है जो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, या ऐसे प्रोफेशन से है जो सेटअप इन इंडिया, तभी तो है। वो इंडिविजुअल के केस में, बाकी में तो है ही नहीं। तो घबरा क्यों रहे हो सर, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिविजुअल के केस में देखना है कि वो कोई बिजनेस तो नहीं कर रहा दुबई में और वो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो, वो कोई प्रोफेशन तो नहीं कर रहा है दुबई में जो सेटअप इन इंडिया हो, दैट्स ऑल। क्योंकि कई चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश जी वहां दिल्ली में ऑफिस खोल रखा है उन्होंने, और वहां पर नौकरी वो कर रहे हैं काम, तो वो वाले ऑफिस में यहाँ पार्टनर बने हुए हैं, उस केस में कुछ हो सकता है। हाँ जी, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवीण अग्रवाल जी, इन केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म हैविंग लैंड एंड बिल्डिंग वेयर वन पार्टनर रिटायर एंड न्यू पार्टनर जॉइन, whether there will be any tax liability to the पहले firm? ज्वाइन करेगा फिर रिटायर होगा माय डियर, नहीं तो डिसोल्यूशन माना जाएगा। आपको पता ही है, अगर एक रह गया तो डिसोल्यूशन हो गया, पहले एडमिट कर लो फिर रिटायर कर दो। रिटायरमेंट वाले को क्या दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, एडमिट वाले का कोई मतलब नहीं। सर एट टाइम्स ना वो सेम पार्टनरशिप डीड में रिटायर भी करते हैं और नया एडमिट भी करते हैं। यार क्यों रिस्क लेते हो, वो पहले एडमिट दिखाते हैं फिर वो रिटायर करते हैं। वो आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपकी जो पुरानी डीड है उसमें क्या लिखा हुआ है वो देखा जाता है, उस डीड में आपने पहले क्या लिखा था। कहीं तो डेथ में ऑटोमेटिक रिजोल्यूशन है, लेकिन कईयों ने लिखा है कि डेथ हो जाएगी तो भी कंटिन्यू करती रहेगी अगर पार्टनर 2 से ज्यादा है अपना लाइफ, और कईयों ने लिखा नहीं डेथ होते ही ऑटोमेटिक रिजोल्यूशन हो जाएगी। ऐसा भी तो है, कई आपकी डीड भी बताएगी कई चीज। एट विल लिखा होता है सर वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विल वाला पॉइंट जो होता है सर उसमें लिखा होता है एट विल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवीण अग्रवाल जी, इन सम केसेस ऑफ सोसाइटी व्हिच आर रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, द पेन हैज बीन अलॉटेड एज एओपी ट्रस्ट तो पीओपी ही होता है वो, आप टी नहीं लगवाया कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा एओपी हो या टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिटर्न फॉर्म 7 में भरनी है, वो ठीक है, अगर करेक्शन करा सकते हैं तो करवा लीजिए फ्यूचर में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट भी तो एओपी होता है, लेकिन ट्रस्ट में एक टी आ जाए तो जरा अच्छा लगता है, वो क्लियर कट हो जाता है कि ये ट्रस्ट बस खत्म, अदरवाइज एओपी वाले भी चल रहे हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर प्लीज एक्सप्लेन डीम्ड रेजिडेंट। मैंने अभी तो बताया, अगर आप you are not liable to tax in a foreign country and you are a citizen of India
and you don't pay tax in foreign country, but your total income in India, Indian income exceeds 15 lakh, in that case you will be treated as deemed resident of India. आप डीम्ड रेजिडेंट माने जाएंगे, और रेजिडेंट के केस में सारी इनकम ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इन्होंने उसको कह दिया है कि रुकिए, हम इसको, आप पहले तो ट्रीटी देखेंगे, टाई ब्रेकर रूल। टाई ब्रेकर रूल में हो सकता है कि दो कंट्री का रेजिडेंट नहीं हो सकता, एक ही कंट्री का रेजिडेंट होगा, तो दूसरी का तो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे A.K. श्रीवास्तव जी हैं। There are a number of government employees who are on deputation to a public sector company where the employer also contributes to PF. Now question, whether in case of such employee, the tax-free interest on So long contribution- as his employer is contributing 2,50,000, the day he gets back to his own cadre, the 5 lakh. वो तो each year is a separate year. Rajesh ji, each year is a separate year. जी सर, जी सर, जी सर. Next question. If the firm has revalued its assets in earlier year and credited the amount in No the capital- revaluation allowed. वो मैं भूल गया कहना। 4549B 45(1) में उन्होंने नीचे लिख दिया है, ना तो कोई रिवैल्यूएशन अलाउड होगा, ना कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट होगी, और ना ही गुडविल सेल्फ जनरेटेड होगी। वो नहीं ली जाएगी एज एसेट, वो नहीं मानी जाएगी। रिवैल्यूएशन भी अलाउड नहीं है, और निल वो भी नहीं अलाउड है। क्रिएटिंग एसेट विच इज सेल्फ जनरेटेड, उसकी वैल्यू लेके आ गए, नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लैंड हैज बीन रिवैल्यूड, अच्छा ये होएगा ही नहीं। रिवैल्यू नहीं अलाउड है। आनंद दुआ जी पूछ रहे हैं, काइंडली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ लायबल टू टैक्स। मैंने बता तो दिया सर, वो लिखा कि वहां वो लायबल है उस कंट्री में, तो बात खत्म हो गई। अगर नहीं लायबल है तो ही तो ये सेक्शन 6 लग रहा है। नॉट लायबल है तभी तो 6(1) आया है कि वो डीम्ड रेजिडेंट होगा। अगर वहां लायबल तो है तो फिर तो वो डीम्ड रेजिडेंट हो ही नहीं सकता। वहां लिखा ही इज नॉट लायबल, इसलिए डीम्ड रेजिडेंट बोला गया। लायबल बता दिया कि कुछ कंट्री में इनकम टैक्स लायबिलिटी है तो वो लायबल है। अगर नॉट लायबल का मतलब वहां लायबिलिटी नहीं है, तो हो गया। विल इट बी एप्लीकेबल ऑन LLP आल्सो सर? इंडिविजुअल ओनली सर, 6 माने ए इज ओनली इंडिविजुअल। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिविजुअल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 45(1) और 45(4) एप्लीकेबिलिटी फ्रॉम 1/4/2020 और 1/4/2021। हो गया ऑलरेडी, यही तो मैं कह रहा हूं। किसी ने कर दिया होगा पिछले साल, मर गया वो, दोनों टैक्स लगेंगे, और बेचारे ने एडवांस टैक्स भी जमा नहीं कराया होगा। ये इमीडिएटली एप्लीकेबल हो गया। टैक्स प्लानिंग तो खत्म कर दी उन्होंने सर। ये 1 अप्रैल 2020 से लग गया, और एक श्रम सेल का रह गया, वो भी बताता हूं। 1 अप्रैल 20 से लग गया है। मैंने शुरू में ही बोला, मर गया वो तो। कोई डिसीजन ले लिया, कोई रिटायरमेंट हो गया, कोई चीज ले ली, वो तो मर गया। कैश लेके चले जाते थे, वो तो पकड़ा गया। अब जरा श्रम सेल का भी सुनो। अभी तक जब श्रम सेल होती थी तो उसमें जो कंसीडरेशन प्राइस दिया जाता था वो कोई मार्केट वैल्यू नहीं था। कंसीडरेशन प्राइस में से हम लेस करते थे नेटवर्थ। नेटवर्थ में होता था बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है सर राजेश जी। अब इन्होंने कह दिया श्रम सेल में जब नेटवर्थ निकालोगे तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट लोगे तो वहां वो वन मत लेना गुडविल जो आपने परचेज नहीं करी। गुडविल नहीं लेना फिर उसमें। नेटवर्थ जो गुडविल परचेज करी है वो लेनी है प्रीवियस ओनर से, अगर परचेज नहीं करी तो वो नहीं लेनी। ठीक है। अब कंसीडरेशन प्राइस को कह दिया फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी। मर गया बेचारा। पीछे क्या होता था, श्रम सेल करीब 5 करोड़ का, उसमें बिल्डिंग भी है, सब कुछ है, मार्केट वैल्यू देखी नहीं। अब वो श्रम सेल अगर हो चुकी है तो पिछले साल से लग गया। अब वो मार्केट वैल्यू अगर उसकी लैंड की ज्यादा है तो फंस गया ना वो। क्या उसको टैक्स लगेगा? और टैक्स लगते ही उसको उन्हें एडवांस टैक्स भी जमा नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। प्लानिंग पहले तो प्लानिंग करी हुई थी कि श्रम सेल में यार मार्केट वैल्यू तो देखनी नहीं होती, कंसीडरेशन प्राइस में लमसम वैल्यू ली है, और वंस लमसम वैल्यू लेकर हम श्रम सेल कर देते थे। अब लमसम वैल्यू नहीं ले सकते, ईच एसेट की मार्केट वैल्यू लेकर कंसीडरेशन प्राइस निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर राजीव चोपड़ा जी है, इफ देयर इज लॉस अगेंस्ट स्टॉक कैन इट बी सेट अप अगेंस्ट अदर प्रॉफिट कैपिटल गेन? सर लॉस बिजनेस का है तो बिजनेस का अगर और कोई प्रॉफिट है तो वहां से ले लीजिए, नहीं होगा तो किसके हाथ में होना ये तो बता दो। फर्म के हाथ में।
इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होना। राजेश फर्म जी, के ये हाथ में। कैपिटल गेन किसको लग रहा है? बिजनेस इनकम किसकी है? फर्म की है, इंडिविजुअल की नहीं है। तो फर्म को लॉस हुआ तो फर्म लॉस कर लेगी, या तो बिजनेस लॉस होगा, इनकम होगी तो वो, नहीं तो कैपिटल गेन से सेटअप कर लेगी। अलाउड ही है सेम ईयर में। तो सेम ईयर में लॉस कैन बी सेटअप फ्रॉम कैपिटल गेन। व्हाट इज द प्रॉब्लम? राजीव जी समझ में आया? चोपड़ा जी मेरे से डायरेक्ट बात नहीं करते, पीछे चलिए। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन संजीव कपूर जी पूछ रहे हैं, इफ प्रॉपर्टी इज सोल्ड बाय ए पार्टनरशिप फर्म which is registered in the name of individual partner who introduced the same at the time of partnership firm, then the capital gain will be charged to the firm or the partner? To the firm. नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता फंड्स किसके हैं। To the firm. नाम से एक मिनट राजेश जी, कभी भी फर्म के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होती, थ्रू पार्टनर होती है। पहले थ्रू पार्टनर होती है, फर्म के नाम नहीं होती। लेकिन अगर वो फर्म को लॉ है कि अगर पार्टनर लाया है तो इवन ही फर्म के नाम पे वो थ्रू पार्टनर नहीं करी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपकी बैलेंस शीट में है, किसकी बैलेंस शीट में? फर्म की बैलेंस, तो फर्म का टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो और टीडीएस कटवाते हुए फर्म का टीडीएस कटवाइए, उसको अंडरटेकिंग दीजिए। टीडीएस भी तो कटता है। बिल्कुल कटेगा सर। हाँ जी, तो वो उसको अंडरटेकिंग दीजिए कि इसके नाम से काटे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, there is no dissolution or reconstitution in the firm, but one assets is taken by a partner at cost during the year ending. एक मिनट सर, एक मिनट, वो पार्टनर एट कॉस्ट, आप क्या कह रहे हैं? पार्टनर को एसेट दे दी जी, तो आप पार्टनर को एसेट दे रहे हैं सर, तो वैसे भी उसको जो पार्टनर को एसेट दी एट द टाइम और रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी ना, डिसोल्यूशन वो तो 41 में ले जाएंगे सीधे। हैं? वो सर आपने किस बात के लिए दी उसको? उनके कैपिटल अकाउंट खड़ा था, कैपिटल लेस नहीं हुआ? अरे कैपिटल लेस नहीं हुआ उसका? बिल्कुल हुआ सर। वो तो मार्केट वैल्यू लेकर सीधा ले लेंगे अदरवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी चेंज इन 45(3)? 45(3) में कोई चेंज नहीं, नो चेंज। In case of retirement of partner, the partner are paid amount outstanding to the credit of partners, but there is a plot of land in firm's balance sheet and whose market price is much more than the book's value. Is there any tax implication? वो सारा बता ही दिया। अगर आपके पास आपने कोई एसेट नहीं दी है तो वो तो कैपिटल गेन फर्म को लगना ही नहीं है। आपने मनी दी है तो कैपिटल गेन उस पे लगना है। एसेट दोगे तब लगेगा ना। एसेट दोगे तो दो जगह टैक्स, एक 45(1) में और दूसरा 45(4) में। अगर रिटायरमेंट है, अगर डिसोल्यूशन है तो एक ही जगह टैक्स है। 9B read with 45(1). Next question, sir. In case of PF contribution is higher than 2.5 lakh, then TDS on interest will be deducted by whom? दोबारा बोलिए। यदि PF में कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा है तो TDS की लायबिलिटी किसकी है? अरे वो जो प्रोविडेंट फंड वाले की होगी, गवर्नमेंट की। जो प्रोविडेंट फंड का पेयर तो वही है ना, वो करेगा। TDS 194A में वो काटेगा। अभी देखना कितनी लड़ाइयां होती हैं। अभी भी तो 190, जब वो 5 साल से पहले होता है, 5 साल से पहले पैसे आते हैं प्रोविडेंट फंड के, तो वही TDS काटते हैं। कौन काटता है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सोसाइटी ट्रस्ट में रजिस्टर्ड हो गई एज ए ट्रस्ट हो चुका है तो, और उसका 15 साल से वो चल रहा है, फिर अब आज रेमेडी क्या है उसकी? सोसाइटी ट्रस्ट में नहीं हो सकती क्या? वो क्या है? चैरिटेबल नहीं है। चैरिटेबल तो ऐसा कुछ लिखा नहीं क्वेश्चन में इन्होंने, तो फिर वो सवाल बताया ना, चैरिटेबल है कि क्या है? छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म 67 आल्सो टू बी फाइल्ड बिफोर ड्यू डेट एज पर रूल्स। वो तो बता दिया, वो तो अब सतीश जी ने पूछा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, tax at source is 25% concession given in previous year, does it continue in current year also? क्या चीज? दोबारा बोलो सर। ये TDS में 25%। नो 31 मार्च के बाद खत्म, 31 मार्च के बाद खत्म हो गया। अरे वो तो 197B सेक्शन पढ़ लो ना। 197B में लिखा है 12 मई से लेकर 31 मार्च खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन कंपनी ओनली होल्ड शेयर्स। बताओ राजेश जी, ये कौन सा फायदा हुआ है? मैं तो मर गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा TDS 7.5% कटता रहा, और बाद में देखा कि मैंने एडवांस टैक्स कम जमा कराया। मैं तो मर गया। ये तो फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है।
चलिए चलिए आगे। Next question. Foreign company only holds share in Indian company and does not have any other income. Does foreign company need to have file income tax return in India? सर अगर तो वो लॉ है कि वो डिविडेंड आएगा ना, और डिविडेंड पे टीडीएस कट गया तो फिर नहीं डाल रिटर्न। सेक्शन 115 सबसेक्शन 1A वो पढ़ लें, वहां पर क्लियर हो जाएगी। 115 कैपिटल ए सेक्शन पढ़ लें, 115A। सर एक पार्टनरशिप फर्म की 2019 में रिटर्न फाइल हो गई, पैन नंबर भी सरेंडर कर दिया, लेकिन डिपार्टमेंट की ईमेल आ रही है कि सर आप फाइल करें ITR। जब पैन कर दिया चिट्ठी लिख दो, ऑलरेडी क्लोज्ड, ऑलरेडी रिजॉल्व एंड वी हैव ऑलरेडी, तो जवाब दे दो बस, क्या है। ऐसे तो कई गलती आ रही है। आज ही किसी ने सवाल पूछा, सर माइनर का पैन नंबर है, माइनर को वो आ गया चिट्ठी, आपने आप उसको रिप्लाई करो, और माइनर का पैन नंबर डालते हैं तो आगे लेता ही नहीं, क्योंकि वो माइनर का होना नहीं चाहता, क्योंकि उधर गार्डियन में वो ऐड हो जाता है फादर में, तो वो उसका जवाब ही नहीं जा रहा, क्योंकि पैन नंबर के बगैर जवाब निकलता नहीं है। तो वो पॉइंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मैं कहा मैं चेक करूंगा, उससे बताऊंगा आपको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर अगर कोई दुबई बेस्ड कंपनी को कमीशन दिया जाए फॉर गेटिंग वर्क फ्रॉम ए यूके बेस्ड कंपनी, उसमें क्या इंडियन कंपनी को टीडीएस काटना पड़ेगा? पेमेंट तो बाहर जा रही है ना टू ए नॉन रेजिडेंट। बिल्कुल। कमीशन है कि क्या है? इंटरेस्ट है। कमीशन है, कमीशन। अगर कमीशन है और फॉरेन की कमीशन दी गई एग्रीमेंट के साथ से, तो कमीशन पे टीडीएस नहीं कटता है। रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज वो है, दैट इनकम शुड बी चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। जो कमीशन दुबई में ले रहा है, दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। 195 में क्लियर किया हुआ है। कई उसके ये जजमेंट है कि जो कमीशन दी जाती है आउटसाइड इंडिया, वो यहाँ पर नहीं होगा, उसमें टीडीएस नहीं कटेगा, दैट इनकम इज नॉट चार्जेबल टैक्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन amount deposited on 31st March 2021 in capital gain account scheme and return filed same day, exemption under section 54 shall be valid or not due to corona सर ड्यू डेट क्या थी? ड्यू डेट जो है उस रिटर्न की उस डेट पे होना है, आफ्टर ड्यू डेट नहीं है। वो अलग बात है कि आपने मकान खरीद लिया तो वो रिटर्न लेट फाइल कर दी, वो केस तो है, लेकिन अदरवाइज कैपिटल गेन स्कीम में यू हैव टू डिपॉजिट बिफोर द ड्यू डेट मेंशन्ड अंडर 139(1), otherwise it will not be treated as amount deposited। वो नहीं माना जाए। सर एक्सटेंडेड ड्यू डेट तो मानी जाएगी? हाँ वो मानी जाएगी, एक्सटेंडेड ड्यू डेट तो मानी जाएगी। वो तो यार वो तो ऑब्वियस है यार, वो तो ऑब्वियस है, एक्सटेंडेड ड्यू डेट इज अ ड्यू डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लेडी ऑफ 90 years of age has a mobile and Aadhaar, but her mobile could not be linked because at this stage her fingerprints अरे could अब not तक 3 महीने be है, तब तक पता नहीं जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी। नहीं सर, इसमें एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बहुतों के साथ। अरे सर ये कोई बात नहीं है, लिंक क्यों नहीं हो सकता? वो बेकार छोटी छोटी चीजें हैं, देखो करना पड़ेगा। इसमें एक बड़ा प्रैक्टिकल इशू है सर। जो आधार सेंटर्स हैं जितने भी हैं, उनमें मोस्टली सब में स्टेयर्स हैं। अब बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते, उनको आधार में मोबाइल ऐड कराने के लिए एक बार जाना पड़ेगा। अब वो जा सकते नहीं क्योंकि स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते। वहां उनका जब तक आधार नहीं होगा तो लिंक नहीं होगा पैन के साथ। सारे जितने भी हैं सब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ही हैं आधार वाले, मोस्टली सर कोई नजर तो आता नहीं ऐसा। और ये चीजें तो वो सरकार तो कुछ नहीं कर सकती कि वो ऊपर नहीं जा सकते। पहले तो होते थे, वो बंद करा दिए। आधार की मशीन लेके भी आ जाते हैं, आप नहीं आ रहे ना सर, पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं, ले आते हैं सर। चलो नेक्स्ट सर, क्वेश्चन बहुत है, अभी 23 है, फटाफट करते हैं। पैन अलॉटेड टू ट्रस्ट वेरी लॉन्ग बैक अंडर HUF कैटेगरी एंड रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A, CP इज नॉट अलाउड। HUF कैटेगरी में और ट्रस्ट? हाँ ट्रस्ट। धन्यवाद, आगे चलो सर, मेरे को आंसर नहीं पता इसका। ट्रस्ट कैसे हो सकता है? ट्रस्ट तो 3 चीजों में हो सकता है, या सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी या फॉर सेक्शन 8 कंपनी, या वो ट्रस्ट में। HUF कहां से हो गया? HUF ने ट्रस्ट में पैसा दिया वो अलग बात है, लेकिन ट्रस्ट कैसे हो सकता है यार? ये पता नहीं क्या क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज द पीरियड ऑफ 6 years has been extended to 10 years for reopening of the case under section 147, whether the case may be opened for the assessment year 2012-13 now
नहीं was नहीं time bound. नहीं नहीं नहीं, लेकिन 30 डेज तो बढ़ गया ना अभी तक, तो जो उसमें स्कोप है ना, ये उसके बाद नहीं, उसके बाद 6 साल से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, और 6 साल में भी 3 साल के बाद जाएंगे तो 50 लाख रुपए होना चाहिए। Next question. Cash deposited in financial year 19-20 by mistake in saving account rupees 56 lakhs received from sale of property not shown in the ITR of assessment year 2021. How to deal now? सर वो तो बैंक में पैसे जमा कराए, इनको 26 उसमें आ गया इनको नोटिस कि आपने इतने पैसे जमा कराए। प्रैक्टिकल चीज क्या है वो बताएं उनको क्या है, वो तो आप नोटिस आना ही आना था, 10 लाख से ऊपर जमा कराओगे तो आएगा ही आएगा, उनको इन्फॉर्मेशन है। Next question. Sir, in a partnership firm, one of the partner is retiring and taking money equal to his capital as per books. Any tax? नथिंग हैपेंस, Nothing. नथिंग, सिर्फ मनी लिया इक्वल टू कुछ नहीं होगा, 45(4) में नहीं लगेगा, और वो 9B तो हो ही नहीं सकता, 9B में मनी है ही नहीं। Next question. There is no dissolution or reconstitution of the firm. However, one ये तो हो गया। अरे बता दिया यार, ये होता है, उसको वो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन मान लेते हैं जब आपस में पैसे दे दिए। किस बात के दिए आपने? Anand Dua Pune, will the provision of section 9B and 45(4) be applicable on LLP also? LLP. सर 9P तभी डीम ट्रांसफर तभी माना जाएगा जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, और रिकॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीजें बता दी, शेयर प्रॉफिट चेंज हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अगर वो वहां नहीं आता फिर भी अगर एसेट दी जाएगी तो नॉर्मल प्रोविजन में आ जाएगी। नहीं, LLP पे भी एप्लीकेबल है सर ये? LLP फर्म ही होती है, फर्म इज इंक्लूड्स LLP। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेकार है क्वेश्चन में सर। Applicability of explanation 36(1) VA from which assessment year? 36(1) VA, हाँ, not 36(1) VA, वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर वाली बातें कर रहे हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये सही वगैरह लग गई इसी साल से, निकल गया जो साल 2021। ये भी सर हो गया क्वेश्चन। ये a proprietorship concern builder on completion of project transfer shop or flat at cost liable to tax. सर 43 CA लगेगा ना? जी 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 जी। 43 CA में मार्केट वैल्यू पे करना पड़ता है स्टॉक इन ट्रेड। The assessing officer issued notice on 31/3/2021 under section 148 without stating reason for escaped assessment. सर यू डोंट हैव टू स्टेट द रीजन। क्या कहते हैं, बात कर रहे हैं, वो पुरानी डेट का तो रीजन नहीं बताने होते, रिटर्न भरो उसके बाद वो रीजन बताएगा। आपको रीजन मांगने हैं, 31 मार्च तक वही है रूल, अब तो 30 अप्रैल तक हो गया। रीजन शुरू में नहीं दिए जाते, रीजन तो बाद में मिलेंगे, जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब मांगोगे तो वो देगा। ये तो लॉ है। If 67 filed after filing of ITR, सर then वो whether वही वाला पॉइंट है जो सतीश जी पूछ रहे हैं, वो उसका लिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, पता करूंगा मैं क्या। हाँ, the assessing officer, अच्छा ये वही आ गया। FTC की बात कर रहे हैं, FTC की। Property is the name of wife and loan EMI is paid by husband. Can wife claim the deduction under अरे section पैसा 24? किसका था सर? जब परचेज करी प्रॉपर्टी, किसका पैसा लगा? कुछ तो अपना भी लगाया होगा जी। तो जिसका पैसा वो मालिक है। स्पाउस के नाम होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अगर आपने गिफ्ट दिए स्पाउस को तो क्लबिंग होती है। Out of 2 partner, one dies, gets capital balance in cash and Dissolution. second partner continue the business with all अरे डिसोल्यूशन में उतना ही पैसा दे दो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। Next question. One firm having share in foreign LLC. Foreign LLC is not giving any document on IT or ITR filing. कोई है ही नहीं वहां पर, LLC है। हाँ LLC है, अब वो LLC कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रही ITR फाइलिंग के लिए, तो मुझे क्या हो क्या करें, नहीं दे रही तो तुम आपस में करो यार, इट इज योर पर्सनल मैटर। इनकम टैक्स वालों को क्या लेना देना। सर समझ नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, TDS deducted on purchase of property from NRI was deposited wrongly under 26 QB. The TDS department gave credit under pen of NRI of रिवाइज कर दीजिए, रिवाइज कर दीजिए, 27 क्यू में डाल दीजिए, लेकिन आपने काटा ही 1% होगा, हाँ तो फिर तो गलत है, वो तो कटना चाहिए पूरा। time limit for a 148 has been extended up to 30 April. हाँ जी, Is extension of time limit by circular is valid
and this ये notice, सर्कुलर नहीं है, नोटिफिकेशन है। और रिलैक्सेशन प्रोविजन एक्ट जो आया था उसमें उनको पावर एक्सटेंशन की, उस पर एक्सटेंशन की पावर है। प्लीज नोट सर मैं उसी पावर में किया है। इनको को नोटिफिकेशन पढ़े। सर मैं इसी पहले चीज पे प्रेस क्वेश्चन नोटिस था, प्रेस नोटिस छोड़ दें, नोटिफिकेशन आ गया है और नोटिफिकेशन नंबर पढ़ें। वहां पर लिखा है इन व्यू ऑफ द पावर कंफर्म्ड ऑन अंडर दिस लॉ, अलाउड है। okay, next question. ITR of a private limited सर was filed by बेसिकली applying मेरा एक section. क्वेश्चन है सर, राजेश भाई, जी राजेश सर, भाई, जी सर, जी सर। बोलो जी। राजेश भाई, इसी पॉइंट पे सर एक क्वेश्चन है कि सर क्या ये जस्टिफाइड था ये एक्सटेंशन करना? क्योंकि सर ये उनके लिए, राजा के लिए हर चीज जस्टिफिकेशन है। राजा के लिए है क्योंकि उनको पता है कि पुराने केस खोल नहीं सकेंगे बाद। तो ये राजा है सर, राजा है सर, राजा जो मर्जी कर सकता है। चलिए Next question है सर, ITR of a private limited company was filed by applying section 115 BAA after having submission of form sir, 10 IC, intimation हाँ। received under section 143(1) has calculated tax by applying a normal tax rate आपने 25%. वो फॉर्म भरा था जब 115BAA के साथ देना था, फॉर्म ही तो भरना था। 10 क्या नंबर आई है, कुछ ऐसा नंबर है, 10 IE ऐसा कोई नंबर है, फॉर्म भी तो भरना था। Okay. कि मैंने ऑप्शन करी है, अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करी तो वो कैसे मान जाएंगे? ऑप्शन एक्सरसाइज का फॉर्म था, नंबर मुझे याद नहीं है फॉर्म था क्योंकि मैं खुद नहीं भरता इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, पर फॉर्म है फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। Next question. If the assets are being sold, which was revalued earlier, whether the revalued amount shall be taken as cost of acquisition or original cost? No, original cost। After receiving notice 148 income revised enhanced, whether only Penalty tax will be liability levied. with interest or penalty will पेनल्टी also विल be बी लेविड। इंटरेस्ट तो लगता ही लगता है, पेनल्टी भी लगेगी। वो तो Next question. आपने रिवाइज करो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो लगेगी। अच्छा, ये तो क्वेश्चन बार बार 2 बार रिपीट कर देते हैं लोग। टैक्स वाज डिडक्टेड एट हायर रेट, रीड माय क्वेश्चन अगेन। मुखर्जी साहब दोबारा लिखिए, वो तो डिलीट हो गया। सर वो ये जो 26 QB में दे दिया था 20% काट करके, हाँ तो फिर रिवाइज कर दो ना, 20 से 27 क्यों में दे दें उसको। आप रिवाइज कर सकते हैं ना जब भी वो होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, द नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 148 ऑन 31 मार्च 2021, कैन नोटिस अंडर सेक्शन 148 बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 30 अप्रैल हो गई अब तो। बिल्कुल होगी। फॉर द असेसमेंट ईयर 13-14 सर वो आप देख लो, 6 साल 6+1 7 ईयर होते हैं ना, देख लो वो हुए कि नहीं हुए। 13-14 का तो हो ही सकता था नोटिस, क्योंकि डेट एक्सटेंड हुई थी ना 1 साल। जी सर, जी सर, ये रिलैक्सेशन में डेट बढ़ा दी थी ना 148 की। जी सर, जी सर। Anyway, sir, thank you very much. Now, without taking more time, I request our Kohli साहब for a formal vote of thanks. और सर एक लास्ट क्वेश्चन रह गया सर, एक अभी आया क्वेश्चन। अच्छा कि सर वो ट्रस्ट के लिए डेट और दे दो सर, ट्रस्ट पे जो सेमिनार करना है, वेबिनार करना है। तो वो तो आप लेंगे। दे दूंगा, डोंट वरी, दे दूंगा। तो आपके ट्रस्ट पे तो चल रहे हैं। सर तो उसकी डेट और दे दीजिए सर। वो तो हम सब लोग तो रिक्वेस्ट करते रहते हैं, टाइम सर के पास होना चाहिए। गुरुजी जब टाइम समय दें जब जरूर देंगे। ठीक है सर। ओवर टू कोहली सर। Thank you, Girija Oja sir, for such a detailed discussion on the various amendments. So amendments is आप partial active बन गया, इतनी सारी amendments हो गई हैं, and so many things keep on changing, and we have no things you have mentioned very clearly, because it's 45(1), 45(4), 9B is a case itself. We have to look. And then deeming the loss of corrective measures which have taken place and serve seizure and what is an inquiry, that is a very valid point. And sir, thank you very much for all the deliberations and the clarification we received. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Singhal साहब also.
Thank you Rajesh bhai, thank you Satish ji, Rajiv ji, जी थैंक यू Hemant सर। ji, Sanjay ji, Sunil अब आइए ji, आप साहब, Everybody, मोदी साहब, thank मोदी you, भाई, thank you very much. फटाफट से रिकवर करिए, we wish you मोदी फटाफट भाई also thank you sir, thank you संजय जी। Thank you sir. good अब तो health. गुरु जी ने सर हमारे साथ परिक्रमा दी राधा कुंड की, बहुत बड़ी गोवर्धन बात। गए थे गुरु जी। चलो very good. आपने और बताया वाली शुरू में। कृपा आप पे और उनपे। और गुरु जी के आशीर्वाद से सर स्पेशली दर्शन हुए बिहारी जी के अंदर से, और ऐसी ऐसी जगह हमने गोवर्धन के दर्शन किए जो कि मैंने पिछले 50 सालों में भी नहीं किए। क्या बात है। क्या बात है। सर जी, क्योंकि एक बिहारी जी के जो गोस्वामी जी हैं उन्होंने पूरी परिक्रमा कराई और सारी चीजें बताई। बढ़िया बहुत सर। सुंदर, बहुत सुंदर। अब गुरु जी कह रहे हैं कि दोबारा भी ले चलो, दोबारा जाएंगे। आपके पूरी बस लेके जाएंगे। लोगों का सजेशन है कि बता कम से कम देना। 40-50 लोगों सही को बात है सर। बता देना, हाँ? ये अपना नाम भी ऐड कर लेना। तो बता देना जब भी जाना हो हमें भी साथ में लेके चलना। अरे आप तो रेगुलर हो सर, आप तो हमें अरे लेके तो चलोगे। सर, अरे नहीं संजय जी सर, हमारे इकट्ठे बहुत मिलके regular चलेंगे। हैं। सर अरे वो था सर, अपना सेमिनार ही आप वहीं पर रख लेना। राजेश जी, हरीश वहाँ पे भाई। धर्मशाला है अपनी, वहाँ पे अरे 700 लोगों राजेश का, भाई, 700-800 भाई। लोगों की है धर्मशाला। वो मतलब उसमें सिटिंग कैपेसिटी है पूरी हरीश पूरी। भाई, मेरी कमेटी फॉर मेंबर इन प्रैक्टिस का प्रोग्राम रख लेंगे। वेरी गुड सर, फिर आप ही प्लान कर लो सर, हम तो आपके अभी साथ हैं सर। भाई, अभी कोरोना केसेस थोड़े से रिड्यूस होने दो। बिल्कुल हाँ, सर, ये थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। सर वो लेकिन जरूरी है। मैं आपको बता दूं सर कि वहाँ मथुरा वृंदावन में कोई मास्क नहीं लगा रहा, और गुरुजी अपना मास्क भूल गए। वहाँ दुकान पे किसी पे मास्क नहीं मिला, और गुरुजी करीब 5-6 घंटे परेशान रह के, राजेश मेरे को मास्क तो दिला दे, और मास्क वहाँ था ही नहीं, ना क्या सेल बात है। काउंटर पे ना कोई पहन रहा था। ओहो। राजेश भाई, सेफ्टी प्रिकॉशन लेनी नहीं वो जरूरी तो है। लेना पड़ेगा जी, बिल्कुल, दैट हैज टू बी फर्स्ट। उनकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है, दिल्ली वालों की नहीं होती भाई। और ठीक है जी, सिंगल साहब आपकी फोटो नहीं आ रही सर। सिंगल साहब, हाँ अभी नहीं आई फोटो। सिंगल साहब तो एक बड़ी लड़ाई लड़के आए हैं अपनी कोविड की, तो मैंने कहा सर कुछ जी। अपने एक्सपीरियंस बताओ सर। मैं मेहंदीपुर बालाजी गया था अभी लास्ट वीक, जी। 2 हफ्ते पहले, 10-12 दिन पहले। तो वहां भी तो ऐसा था, वहां वीडियो ऑन चलने किया की होगा। जरूरत नहीं थी। चलने की जरूरत नहीं थी, भीड़ भीड़ अपने अपने आप आप ले जा रही हरीश थी। भाई, और किसी को कोई मास्क वास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग क्या सब बेकार है। कोई सब लेकिन क्या बेकार है ना सतीश भाई, उधर लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, दिल्ली वालों की इम्यूनिटी इतनी नहीं होती। सर पर वहां रश तो दिल्ली वालों का ही होता है। हाँ वो बात तो है, तो इसीलिए तो कोरोना केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दर्शन की लाइन में तो दिल्ली वाले ही है मोस्टली। 3000 से ऊपर केसेस आए हैं आज। हाँ जी, हाँ सर, जी। आज आए हैं आज। 3600। एनीवे सर, 3600। सिचुएशन इज रियली अलार्मिंग सर, अब अलार्मिंग हो रही है धीरे धीरे ये। चलिए सर, 3600 बेस्ट यही है केसेस कि अपना टेक केयर करें, अपना प्रिकॉशन लें और सिक्योर रहें। जी। और थैंक यू सर सर, अब थैंक यू। हाँ सिंगल साहब, अब आपके ऊपर ही है कि आप गोवर्धन में सर या मथुरा में एक सेमिनार अपना आप अपनी जो जरूर कमेटी है उसके अंडर करो सर। जरूर राजेश भाई, जरूर। हम सब आपके साथ हैं सर। सिंगल साहब, हम पंजाबी बाग वालों की अच्छी धर्मशाला है, उसमें 700 की कैपेसिटी है, वो आप बुक करवा सकते हैं अरे वहाँ पे। बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा ऑडिटोरियम है उसका। चलो सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। Bye-bye. राधे सर। राधे जी, राधे राधे। टेक केयर सर, कल राधे हमारा राधे। बैंक ऑडिट पे है, अमरजीत चोपड़ा जी हैं स्पीकर, सेम टाइम 5 बजे, तो ऑल आर वेलकम सर वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। राधे राधे ओके जी। सर, राधे 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 राधे।